नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज एनआर के भी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामग्याल जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। And to all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Abariyanko Jambu to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. And in case you haven't subscribed to the channel, please do so. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए प्लीज। When you click to that icon, subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. And please try and do send in your comments. अपने comments जरूर भेजें। In the meantime, Pradeep ji, the Brazilian president is coming to India with 260 heads of business, and a huge, wonderful deal is going to be signed between India and Brazil. Mashallah, zabardast. So that will be fantastic. After Europe, after Australia, UK, Oman, UAE, and the USA, now we've got Brazil. Fantastic, absolutely. Absolutely, fantastic. and it's not going to stop there, I think. That is not the Brazilian president, by the way. That is the Mumbai mayor. ऋतु तावड़े जी हैं वो ब्राजील के बोल्सोनारो साहब नहीं है वो। और क्योंकि आपने अब दिखाई दिया ऋतु तावड़े जी को, वो भी बात कर लेते हैं। ऋतु तावड़े जी की प्रायोरिटी है कि बांग्लादेशी हॉकर जितने भी हैं उन सबको, रेडी वाले, उन सबको भगाएंगी वो कहती हैं एक भी घुसपैठिया नहीं रहेगा बॉम्बे में। Not while I am the mayor. That's what she says. Pradeep ji. बिल्कुल। I mean the priorities are already set, but I think most of those priorities जो भी है, Fadnavis ji ने already is earmarked money for that. He's made a program for जो manifesto was there. It was clear. देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी and the late अजित पवार जी मिलकर ये manifesto बनाया था for all the municipal corporations wherever they fought together. And everything was clear, right from housing to drinking water to footpaths to hawkers. Everything was clear in this manifesto. Fantastic. So it's going to be decided ultimately by Fadnavis ji. All projects cleared by Fadnavis ji, and commissioner is reporting to him directly anyway. Either way, so everything is going to be as per the plan. But in terms of priorities, don't you think the Mumbai mayor should be concentrating on roads or water, on pavements, on other things? मतलब यहाँ पे घुसपैठियों पर इनका वो तो isn't that a home ministry prerogative? I think that's anyway. She's pegged that along with the hawkers. So if the hawkers come, the BMC comes into play, and if the BMC comes into play, she comes into play. So उन्होंने दोनों को साथ में जोड़ दिया है. So let's go straight across to Mukesh Gandhi Sahab. I think Mukesh Gandhi Sahab is with us. Let's go straight across to him. Mukesh Gandhi Sahab, नमस्कार. नमस्कार। नमस्कार सर, जय सिया राम, हर हर महादेव। कैसे हैं सर? जय सिया राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कल वैसे शिवरात्रि भी है, कल से शिवरात्रि शुरू हो जाएगी शाम से, तो शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो मुकेश गांधी साहब, आपसे न जाने कितनी मर्तबा बात हुई है यहाँ पे। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस so many times. Of course, the good news is that Mr. Bolsonaro, the Brazilian president, is coming to India with 260 heads of business, and we're going to be having another free trade agreement with Brazil. That will be fantastic. उसके बाद अर्जेंटीना के साथ ज़बरदस्त होने वाला है। बट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर, आपके साथ न जाने कितनी मर्तबा बात हुई मुंबई के बारे में, सड़कों के बारे में, कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में, करप्शन के बारे में, ड्रेनेज के बारे में, सिवेज के बारे में और गार्बेज के बारे में, न जाने कितनी बार आपसे बात हुई है। अब प्रायोरिटी जो बताई है महापौर जी ने, मेयर साहिबा जो ऋतु तावड़े जी हैं, उन्होंने कहा है कि मेरी प्रायोरिटी क्या रहेगी, सबसे पहले ये जितने भी हॉकर हैं बांग्लादेशी, मैं उनको निकालूंगी। अब आप क्या कहेंगे इसके बारे में सर, बताइए। यू थिंक दैट शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ द मुंबई मेयर? आप बताएं सर। अगर ऋतु तावड़े जी ने ये संकल्प किया है और इन एक्शन वो लाना चाहती है तो यह बहुत अच्छी प्रपोजल है, क्योंकि बांग्लादेशी मुसलमान जो हॉकर्स बन करके पूरे मुंबई के फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, कई कामों का, रिक्शाओं का और कई जगह पे उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया हुआ है और बड़ी दादागिरी से, बड़े शांत पट्टी से वो अपना काम कर रहे हैं। और इसमें से कितने हमारे देश के साथ में जुड़े हुए, हमारी भारत माता के साथ में, संस्कृति के साथ में, वो बात तो छोड़ दो, पर कंट्री के अगेंस्ट कामों में भी ये लोग कितनी मदद करते हैं वो भी हमको देखना चाहिए। तो ऋतु तावड़े जी का ये जो प्रस्ताव है ना, बहुत ही अच्छा है
और इमीडिएटली ये खाली बोलना नहीं चाहिए। बीजेपी आजकल बोलती बहुत है, करती कम है, तो करना चाहिए। क्योंकि आपने जो बताया ना वैसे ही है ना कि आज भी बम्बई के रोड की हालत बहुत बहुत खराब है। आज पॉल्यूशन लेवल बहुत बढ़ गया है। दूसरी बात है कि यहाँ बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन इतना इलीगल और ये चल रहा है रीडेवलपमेंट के नाम पे, एसआरए के नाम पे, और उसके ऊपर रेरा का जो कोई कंट्रोल होना चाहिए वो कंट्रोल भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फटकार लगाई कि स्टेट गवर्नमेंट शुड टेक द एक्शन अकॉर्डिंग टू रेरा। पर आज मेरे नजर में आज लाखों, हजार नहीं पर लाखों लोगों के घरों में रेरा के नाम पे उनके पैसे फंसे हुए हैं। बिल्डिंग का पोजीशन मिलता नहीं है। 85-90% पेमेंट देने के बाद में बिल्डर लेटर भेजता है कि ड्यू टू दिस प्रॉब्लम आई एम अनेबल टू मेक द प्रोजेक्ट कंप्लीट इन दिस सो एंड सो मंथ, सो प्लीज टेक बैक योर मनी। और बाद में लीगल चालू काम कर देते हैं। अरे सर, कौन सी दुनिया में रह रहे हो? कोई बिल्डर पैसा वापस देता ही नहीं है। बोलते नहीं हो रहा, मेरा दिवालिया निकल गया, आई हैव गॉन बैंकक्रप्ट। But what he said is right. Supreme Court itself has questioned ये रेरा एक्ट बना के क्या भूल किया हमने? Because रेरा एक्ट से कोई सॉल्यूशन किसी का नहीं हो रहा मुकेश गांधी साहब। बल्कि तकलीफ हो गई right. इसका कारण क्या है देखिए, ऑर्डर के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है। बोलिए बोलिए। पूरे स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं वो बिल्डर लॉबी के साथ में मिले हुए हैं। उनके सबके एजेंट है, वो एजेंट के थ्रू उनका मनी कलेक्शन होता है। आप कोई बिल्डर के अगेंस्ट में कंप्लेंट करो तो दूसरे दिन वो बिल्डर घबराता नहीं है, क्योंकि दूसरे दिन सुबह वो अलग टाइम पे मिनिस्टर को मिलने को जाता है, हाउसिंग मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, सेटिंग चालू होता है। जी दुरुस्त बात है। मैंने नजर के सामने देखा है। पहले क्या जमाने में था कि ये सब बड़े बड़े बिल्डर, जितने में किसी के नाम नहीं लूंगा, आप सबके नाम जानते हैं, ये सभी बिल्डर के अपने एग्जीक्यूटिव या सीईओ को भेजते थे। पर आजकल तो मंत्रालय में जाओ, मिनिस्टरों के बंगले पे जाओ, बड़े बड़े बिल्डर कुर्निश बजाते हैं और पेमेंट भी वहां होती है। मुकेश गांधी साहब, आप भूल कर रहे हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है सर। आप भूल कर रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। पूरा खुल के बोलिए ना। क्या सर, आजकल तो पॉलिटिशियन बिल्डर हैं, आप किनकी बात कर रहे हो? नहीं, इतना खुल के सर, एग्रीमेंट होती है वो एग्रीमेंट में बताया सर नाम ब्लैंक है, सर नाम ब्लैंक है। मंत्री जी से पूछा जाता है किसका नाम लिखूं यहाँ पे, लगाओ आप, किसको पैसा भेजना है, बोलिए जी। हाँ, बहुत बहुत माने इतना ये कर रहा है। और इसके ऊपर अगर देवेंद्र फडणवीस को आगे जाकर के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने की रेस में जाना है और लोगों का विश्वास जीतना है, तो ये बिल्डर लॉबी को जो एसआरए के प्रोजेक्ट में, रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में और अन्य प्रोजेक्ट में जो करप्शन चलता है उसको चेक करना चाहिए। और उन्हें मंत्रालय में एक ऐसा विभाग बनाना चाहिए कि जिससे छोटे से छोटे आदमी का भी, अगर 500 स्क्वायर फीट का भी घर उसको नहीं मिलता है तो उसकी अपील के साथ में उसको मदद मिलनी चाहिए, जो आज की तारीख में कोई मदद नहीं करता है। इवन भाड़ा के बिल्डिंग में लॉटरी लगी है वो फ्लैट भी उनको मिलते नहीं है, और मिलते हैं तो इतने कमजोर कंस्ट्रक्शन वाले मिलते हैं कि बेचारा हैरान हो जाता है। पहले ही मानसून में पानी गिरना शुरू हो जाता है और किसी को कंप्लेन नहीं कर सकता है। ये गांधी साहब, हमारे मुंबई की गांधी साहब, बात यह है पूरे देश में चर्चा हो रहा है, मर्जर हुआ नहीं हुआ, किसने कहा और किसने इनकार कर दिया। अजित पवार जी का फ्लाइट का दुर्घटना एक्सीडेंट है, रोहित पवार जी कह रहे इंक्वायरी करो, शशिकांत शिंदे जी कह रहे कि मर्जर तय था, अजित दादा दोनों मर्जर पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले थे। अब ये क्या चल रहा है? ये क्या अचानक ये पूरे मर्जर डीमर्जर अलग अलग चीज, अजित पवार का मिस्टीरियस जाना, शरद पवार हॉस्पिटल में एडमिट होना, ये क्या चल रहा है? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? गांधी साहब, बस आपने प्रदीप जी जो लास्ट सेंटेंस बोला ना, शरद पवार जी का हॉस्पिटल में एडमिट होना, भगवान उनको लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य दे। पर ये जब इश्यू आ गया मर्जिंग का, सुनेत्रा पवार जी ने, ताई ने जब शपथ विधि कर ली, तब अभी स्टेटमेंट तो जो भी होना चाहिए फ्रॉम दी डायरेक्ट माउथ ऑफ दी शरद पवार जी होना चाहिए।
पर शरद पवार जी ने क्या किया कि मैं बीमार हूं करके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, और यहां उन्होंने रोहित पवार को और उनके प्रेसिडेंट को, फिर अनिल देशमुख को, ऐसे अलग अलग लोगों को फ्रंट में भेज दिया बोलने के लिए। अभी झूठे आक्षेप लगाना बहुत इजी है। आज अजित पवार जी का सडन एक्सीडेंट में डेथ हुआ है, इनके पीछे कोई कॉन्स्पिरेंसी नहीं है, और कॉन्स्पिरेंसी होगी तो वो खोलने के लिए सीएम ने पूरा उनके ऊपर समिति लगाई है, पूरा चेकिंग चल रहा है और पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पर लोगों को दूसरा काम नहीं करते हुए खाली एक भ्रमित करने के लिए ये मर्जिंग करके बातें चल रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। जो रेरा है, इट हैज क्रिमिनल पावर्स ऑल्सो, इन द सेंस दैट they can actually send builders to jail, and the number of builders who have been sent to jail by RERA is so negligible as to be laughable. मतलब मजाकिया बात है। आप ये बताइए, जब से रेरा आया है, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग बैक टू दैट सेम सब्जेक्ट अगेन, प्रदीप जी सॉरी, आपने जो बात करी थी बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बात करेंगे पॉलिटिक्स की। लेकिन ये रेरा वाली बात जो है, ये लोगों के साथ जुड़ी हुई है, लोगों के दिल के साथ जुड़ी हुई है सर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स इन मुंबई आर वेरी ओल्ड नाउ एंड दे नीड टू बी रिकंस्ट्रक्टेड। कोई 60 साल पुरानी है, कोई 40 साल पुरानी है, कोई 50 साल पुरानी है, कोई 70 साल पुरानी है। प्रॉब्लम क्या है सर कि रेरा के पास पावर है कि आप जो हैं मिनिमम से मिनिमम 3 साल के लिए, मतलब मैक्सिमम 3 साल के लिए किसी को जेल भी भेज सकते हैं। सर, आई एम रीडिंग द डेटाबेस हियर, I don't have a single case of RERA in Mumbai sending any builder to jail. Not one. जब से रेरा आया है, EOW ने किया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किया है, लेकिन वो अलग है। रेरा ने एक भी बिल्डर को अंदर नहीं भेजा है सर। ऐसा क्यों है सर, मुकेश गांधी सर? यू आर राइट सर, यू आर राइट। रेरा ने कोई बिल्डर को अंदर नहीं भेजा है, उनके ऊपर क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी लगा करके उसका एक्ट के मुताबिक उनको जेल में नहीं भेजा है। खाली ईओडब्ल्यू में जितने केस गए हैं, जो पब्लिक ने लेकर जाकर के अपने सेफ्टी के लिए ईओडब्ल्यू को गए हैं, तो ईओडब्ल्यू ने कई बिल्डरों को जेल में रखा है। और सर सच बात बोलूं, जेल में मलाई खाते हैं, मस्ती से रहते हैं, और उनका जो आज 4 साल 5 साल पहले जो जेल में गए वो आज भी जेल में है। ऐसे कई बिल्डर है सर, और आज उनकी प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन डबल ट्रिपल हो गया। और दूसरी बात क्या है मुकेश गांधी साहब, के लिए भी सर उनको सेटलमेंट कराने के लिए भी ईओडब्ल्यू कोई स्कीम नहीं दिखाती है, नहीं कोई बात प्रपोजल ही आती नहीं है। नो सर, पब्लिक का पैसा तो आता ही नहीं है। नहीं सर, ये अलग है, बिकॉज ये क्या है, ईओडब्ल्यू के पास जो मैटर होता है यूजुअली फ्रॉडुलेंट मैटर्स होता है। बाकी उनका कहना है कि आप रेरा में जाके क्रिएटेड अ स्पेशल, गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड सेपरेट वारंट, तो आप वहां जाकर अपने ग्रीवेंसेस को रीएड्रेस करें। तो गांधी साहब, बात ये शुरुआत में हम लोग कर रहे थे, देयर इज नो जस्टिस फ्रॉम रेरा। रेरा से कोई जस्टिस नहीं है। जैसे बजाज साहब ने आंकड़े दिए कि नो क्रिमिनल लाइबिलिटीज, रेरा ने भेजा किसी को जेल में। ये बाकी ईओडब्ल्यू जो फ्रॉडुलेंट मैटर्स है, वो अलग है। लैंड डील्स है, वो फ्रॉडुलेंटली लैंड कैप्चर करके रखा है, सरकारी लैंड को अपना लैंड, they have gone inside, but पब्लिक के तरफ से जस्टिस नहीं मिला है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन कल का ही है कि why have we created the RERA? मुकेश गांधी साहब, प्रदीप भाई और सर, उसमें क्या है जी, ये जो राजीव जी ने बताया वो हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग का जिनका केस है, इरेगुलरिटी है, फ्रॉड, वो अलग है सर, वो अलग है। वो रेरा में ईओडब्ल्यू है सर, वो रेरा में नहीं है। व्हाट इज रेरा डन है। अच्छा, पर बाद में रेरा के पास में जब कॉमन मैन लेता है, जिसने अपनी जीवन की पूंजी डाल दी है पूरी कर्जा करके, उसको, अरे ऐसे भी मैंने लोगों को देखा है जिसने अपनी किडनी बेच के अपना घर लिया है, और वो पैसा भी बिल्डर हरामी लोग पूरा खाने को सोचते नहीं है। हम लोगों ने पूरी कैंपेन करी थी चेंबूर में, वेयर वी डिस्कवर्ड 17 बिल्डिंग दैट हैड गॉन इन फॉर रीडेवलपमेंट। 17 का ही था ना, 17 थी शायद, जैसे मेरे ख्याल। उसमें सर कई लोग ऐसे हैं अधेड़ उम्र के सीनियर सिटीजन जिन्होंने आत्महत्या कर ली है सर। दे हैव नोवेयर टू गो, दे हैव नोवेयर टू लिव, क्योंकि बिल्डर ने रेंट देना बंद कर दिया, रीडेवलपमेंट हो नहीं रही, पूरा खोखा का खोखा खड़ा है बिल्डिंग का, खांचा पूरा का पूरा खड़ा हुआ है,
पोजीशन मिल नहीं रहा है, रेरा इज डूइंग नथिंग। और जब बिल्डर के पास जाते हैं तो बिल्डर बोलता है रेरा से लो भाई, आप तो रेरा में गए ना, जो वो ऑर्डर आएगा वो हम फॉलो करेंगे, और वो ऑर्डर आता नहीं है। सो रेरा हैज बिकम वेरी कन्वीनियंट फॉर बिल्डर्स। 3-4, 5-5 साल थे वो मैटर उधर पेंडिंग है, छोटा छोटा मैटर्स रेरा में। देयर इज नो जस्टिस एब्सोल्युटली। मुकेश गांधी सर, इसका उपाय, हाँ बोलिए, इसका उपाय क्या है राहुल जी, राजीव जी? ये इसमें जो होम मिनिस्ट्री है वो देवेंद्र फडणवीस जी के पास है। वो इतने पूरे महाराष्ट्र के नेता है और अभी आगे जाकर राष्ट्र के नेता बनने की भी तैयारी उनकी हो रही है। तो वो होम डिपार्टमेंट के ऊपर ईओडब्ल्यू में कंप्लेन होवे या और कोई डिपार्टमेंट में कंप्लेन होवे या हाउसिंग मिनिस्टर से कंप्लेन होवे, उसके ऊपर उनका फोकस और उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता नहीं है। उनके इर्द गिर्द के 3-4 लोग बोलते हैं क्या मैटर है, लाओ। अरे व्हाट इज दिस सर यहाँ पे एक छोटा सोल्यूशन है। किसी भी हालत में सर, अभी देवेंद्र फडणवीस जी को इनके लिए स्पेशल डिपार्टमेंट और स्पेशल ऑफिसरों को अपॉइंट करना चाहिए, नॉन करप्ट। सर रेरा शुड बी गिवन, रखनी चाहिए। सर रेरा के पास पूरी कंडीशंस होनी चाहिए कि आपके पास 6 महीने से ज्यादा कोई मैटर पेंडिंग नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, स्पेशल कोर्ट शुड बी डेजिग्नेटेड कि रीडेवलपमेंट में जहां पे बिल्डर ने, क्योंकि दिख जाता है सर, 6 महीने में दिख जाता है बिल्डर की इंटेंशन क्या है, 2 मिनट में मालूम पड़ जाता है सर। आप जेल भेजिए एंड गवर्नमेंट विल इंटरवीन एंड गवर्नमेंट विल टेक ओवर द बिल्डर्स प्रॉपर्टी। सर अभी क्या हो रहा है, मेरी बात सुनिए, आपने जो मैटर रेज किया ना बहुत जबरदस्त मैटर है। क्या है, अभी रेरा के तहत, रेरा के कानून के तहत, प्रदीप जी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिल्डर अगर कहीं पर फॉल्ट में आ गया, इफ ही हैज वायलेटेड एनी ऑफ द कंडीशंस, उसको सिर्फ 10% भरना है टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट एंड इज फ्री 10% ओनली। सर जितनी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उससे 3 गुना ज्यादा बिल्डर की खुद की प्रॉपर्टी से रिकवर करके लोगों को देना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा कुछ नहीं होगा। मुकेश गांधी साहब आप बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, बोलिए। सर राजीव जी, आपको पता है कि जो बिल्डर ये पैसा ब्लॉक करके बैठते हैं, उनके पास में 500 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा तो वो बिल्डर के पास में दूसरी 3-3, 4-4 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी और दूसरी हर चीजें, जमीनें वगैरह रहता है सर, होती है। उनका असेसमेंट भी इनके ऊपर आता नहीं है। और बिल्डर सेफ्टी से पब्लिक को चीट करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी बनाता है और लोगों को चीट करता है। मैंने कहा देवेंद्र फडणवीस जी को और पूरी हमारी यूपी गवर्नमेंट के लोगों को एक स्पेशल डिपार्टमेंट फॉर द customers, those who have purchased the flats in the this all project, housing project, they should be protected. अगर नहीं होगा तो आप देखना कि within 6 months मुंबई में बहुत बड़ा बवाल आना है। और राज ठाकरे जी को मैं खास कहता हूं कि आपको कोई मूवमेंट करनी है तो ये मूवमेंट करो। लोगों को मराठी करके बहुत टाइम हो गया। ऐसे अभी कोई लोक नेता खड़ा होना चाहिए मुंबई में अभी कि जो ये मूवमेंट खड़ी करे। आज मूवमेंट नहीं होती है सर। और आज दूसरा क्या होता है, साइबर क्राइम में भी इतने ही प्रॉब्लम है। साइबर क्राइम भी कितने प्रूव होते हैं फिर भी उनके ऊपर एक्शन ली नहीं जाती है। और आज लोगों का डेटाबेस की चोरी, ये वो सब सर वो तो पार्ट 2 हो गया सर, वो पार्ट 2 हो गया। इनके ऊपर होम मिनिस्ट्री, वो पार्ट 2 हो गया, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ना आई वांट टू गिव वन एग्जांपल मुकेश गांधी साहब। निर्मल लाइफस्टाइल लाइफ एग्जांपल है। निर्मल लाइफस्टाइल ने बुकिंग्स वगैरह ले लिया और टाइम पे प्रोजेक्ट दिया नहीं है। The RERA asked Nirmal Lifestyle to immediately pay the buyers the X amount. They refused to pay. They went to the Supreme Court. They went to the Supreme Court और वहाँ कुछ नहीं हो रहा। ये बेचारे buyers, which was one cancer patient, he approached us. Cancer patient. RERA से justice नहीं मिला, Supreme Court से justice नहीं मिला। हमने सिर्फ फोन किया, निर्मल भाई ये मरने वाला है, लास्ट स्टेज है उनका, आप पैसा उनको दे दो करके ऐसे राहत। अभी builders are not afraid of Supreme Court. They are not afraid of RERA. They are not about any. No, nothing. लोग सब मैं आपको बताऊं, एक सांताक्रूज में आहूजा बिल्डर करके हैं, आज वो जेल में है ईओडब्ल्यू के कारण। पर उसने इतनी मिडिल क्लास की लेडीजों का पैसा इंटरेस्ट पे लिया हुआ था, वो सब पैसा डुबा के बैठा है। सर मेरी बात एक किया। अरे मुकेश गांधी साहब एक मेरी छोटी सी बात बताइए, सिर्फ एक ही बिल्डर की क्यों बात कर रहे हैं आप मुझे बताइए जितने भी बिल्डर, ऐसे तो बहुत है सर। छोटी सी बात, अरे आप बताइए सर पूरे 1 घंटे में लिस्ट बताऊंगा। सर मैं आपको कुछ और बोल रहा हूं।
आज तक कोई भी बोलिए सर। किसी भी बिल्डर के खिलाफ कोई भी कहीं पर भी गया है क्या, उसको कोई कॉम्पेंसेशन मिली है? ये तो हम लोगों ने यहाँ से फोन किया, सब कुछ किया, ऐसे कोई 5-10 लोग हैं जिनकी हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बट दैट वी कैन डू इट ओनली एट आवर लेवल. एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न, व्हाट प्रदीप जी जस्ट टोल्ड यू, इफ वी कैन डू इट, व्हाई कैन द गवर्नमेंट डू इट? आप मुझे बताइए. यस, आई वुड लाइक टू नो. एक बार अगर कड़क तरीके से या जेएसपी अपने तरीके से अगर हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं कर सकती? आप मुझे बताइए. मेरा तो सिंपल है सर, क्योंकि ऑल बिल्डर्स हैव पॉलिटिशियंस एज देयर पार्टनर्स. सीधी बात है सर. अब आप बोलें. एंड पॉलिटिशियंस आर बाइंग प्रोजेक्ट्स. सरकार की आमदनी में कमी आ जाएगी. जिनकी नियत में ही खोट है वो क्या लोगों को मदद करेंगे? सर विच इज रॉन्ग सर. आप मुझे बताइए, आज की तारीख में आज ट्रैफिक क्यों होता है सड़क पे? आज ट्रैफिक इसलिए होता है सड़क पे, एवरीवेयर यू सी दीज क्रेन्स आर गोइंग और these huge mixers are going or all these huge dumpers are going 24/7. सर ये अलाउ किया था एक नाथ शिंदे साहब ने. उन्होंने कहा कि बिल्डिंग फटाफट होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए. पहले क्या था कि 11 बजे के बाद ये चल सकते थे. आज की तारीख में 24/7 they are all the time on the road. सर उसके बाद पोल्यूशन नहीं होगी तो क्या होगा? कोई टाइम लिमिट ही नहीं है सर. पोल्यूशन नहीं होगी तो क्या होगा आप बताइए? ओनली इन द नाइट, जैसे पहले होता था, जैसे 4 साल पहले होता था. आज नहीं है सर. तो माय पॉइंट इज, व्हाट्स द पॉइंट? और सर उसके साथ में नॉइस पॉल्यूशन भी कंस्ट्रक्शन के कामों के कारण इतना बढ़ गया है कि आजू बाजू के बेचारे सीनियर सिटीजन होंगे, बीमार लोग होंगे, बच्चे लोग जो स्कूल के कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको इतनी तकलीफ होती है और कोई नियम लागू नहीं होता है. तो मिस्ट्री की बात क्या है? तो इसमें रिसर्च करने की बात क्या है? इन्वेस्टिगेशन की बात क्या है? मुकेश गांधी साहब, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, बम्बई के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी कहावत है वो, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको ले क्यों नहीं रही? व्हाई इज नो वन टेकिंग अप दिस इशू? आप बताइए. क्योंकि सबको कंट्रीब्यूशन मिलता है ना. रात को सबकी बंटवारा हो जाता है, सब ले लेके मजा करते हैं. बिल्कुल. ये पुरानी कहावत थी ना, अंधेरी प्रजा, अंधेरी पॉइंट. गांधी साहब, सबके मन में, आप यू आर फ्रॉम द एनसीपी, सबके मन में यही है कि शरद पवार साहब का टर्म अभी खत्म होने वाला राज्यसभा में जी. उनके पास सिर्फ है 10 MLA, तो कैसे वो टर्म एक्सटेंड होगा? ये बाकी एक ही तरफ से है कि मर्जर ऑफ एनसीपी शरद पवार एंड अजित पवार, तो उनको चांस मिलेगा. हाउ डू यू सी दैट? ये खबर तो दे दो, क्या होने वाला है शरद पवार साहब का? गांधी साहब. सर मैंने पहले आपको बताया था कि शरद पवार जी की टर्म मार्च में कंप्लीट होती है, इसीलिए इन्होंने ये मर्जिंग का प्रोजेक्ट बनाया था, जिसके कारण जो एनसीपी के अजित दादा जी के पास में जो 40 MLA है, 41, वो उनका सपोर्ट उनको मिल जाए, उनका वोटिंग मिल जाए तो वो राज्यसभा में जा सकते हैं. अभी दूसरी बात यह कि सुनेत्रा ताई पवार जी का भी अभी ये हुआ है, तो एमपी की सीट खाली हुई है उनकी, तो वो सीट के ऊपर भी उनको 2.5 साल के लिए तो एक्सटेंशन मिल सकता है, पर उनको चाहिए 7 साल के लिए परमानेंट पूरा ये चाहिए. तो ये सब अभी सर ऐसा है, हम लोग तो शोले पिक्चर देखते हैं, एक सीन आता है, दूसरा सीन जाता है, पलटता है, कभी हीरो गाना गाता है, कभी हीरो रोता है, कभी विलन जोर में आता है. ये स्टोरी हम सब देखते हैं टीवी के ऊपर. बाकी सर एक्शन तो वो अपने हिसाब से ही करते हैं. और मुकेश गांधी साहब, ये बार बार आ रहा है कि पायलट का इंक्वायरी करो. जैसे रोहित पवार ने कहा कि पूरा एक्सप्लेनेशन देके कहा कि कोई एक टाइम आने से पहले किसी का फोन आया था तो लेट हो गया, सब चीज लेट हो गए, फिर पायलट चेंज हो गया. रोहित पवार का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट किसी का साइन करने के लिए अजित पवार जी पर प्रेशर था. तो ये सब क्या है? ये कोई अरोरा का नाम आ रहा है, अरोरा 250 करोड़ क्या, और अजित पवार जी नहीं चाहते थे उसको दे, उनको फोर्स करके देना पड़ा. ये सब क्या चल रहा है गांधी साहब? सर ऐसा है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, शरद पवार जी की कूटनीति जो है. एक और जब ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है,
तो वो जब उन्होंने कहा तब शरद पवार जी का पहले ही स्टेटमेंट में आया कि इसमें राजकारण मत लाइए, और वो हिसाब से पूरी बात चली थी। बाद में शरद पवार जी बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में चले गए, फिर रोहित पवार को भेज दिया फ्रंट के ऊपर, और आज तक के जो पूरा स्क्रीन के ऊपर सब दिखाते हैं वो दिखा के सब बातों का एलिगेशन किया। पर सर ऐसी बात होती है कि कोई भी मिनिस्टर होगा, और या तो आप और मैं भी होंगे, कभी हमको कल जाना है पुणे, पर कोई सडन काम आ गया, कोई मैटर आ गई, तो हम लोग रुक के जाते हैं। अगर हम बाई ट्रेन अहमदाबाद में जाने वाला होगा तो मुझे लगता है कि नहीं, अभी मैं अहमदाबाद की रात की ट्रेन में नहीं जाऊंगा, कल सुबह की फ्लाइट में चला जाता हूं। तो इतनी बात थी, इतनी छोटी सी बात को ये रोहित पवार ने इतना फ्लेयर अप किया है कि मुझे उसमें ही उनका कोई इंटेंशन खराब दिखता है। सर सवाल के जवाब उनका इंटेंशन क्या है मैं आपको बता देता हूं। उनका इंटेंशन ऐसा है कि सुमित्रा ताई पवार जी को जो तटकरे जी और प्रफुल्ल पटेल जी और छगन भुजबल जी जो सपोर्ट दे रहे हैं, वो सपोर्ट सिस्टम के ऊपर उंगली करके वो सपोर्ट सिस्टम तोड़ना चाहते हैं लोग, और फिर बाद में उनको मर्जिंग करना है। तो ये मुमकिन नहीं है, हमारे एनसीपी के कोई लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन सर ऐसा है कि ये कहा जा रहा है कि मैं आ रहा हूँ सर। अविरल मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। जय सिया राम। सो नाइस ऑफ यू सर। सर स्क्रीन पे आता नहीं है, स्क्रीन पे अरे भाई फोटो अरे प्लीज ये क्या कर रहे हैं भाई आप? मुकेश गांधी साहब अगर हमें नहीं देख पाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम कहाँ जाएंगे भाई? प्लीज नहीं प्लीज अभी से फोटो ही खाली चिपका के रखा है। Please be kind enough to show the entire screen to Mr. अविरल मलिक जी का Mr. Gandhi. मलिक जी आपका दिख रहा है क्या? सब दिख रहा है मोबाइल पर? हाँ अविरल मलिक साहब को सब कुछ दिखता है सर, वो अंतर्यामी। बिल्कुल आपका स्पष्ट आ रहा है, एकदम एक एक चीज दिखती है सर। उनको क्या बात कर रहे हैं? वैसे बाय द वे अविरल मलिक साहब और मुकेश गांधी साहब, आप दोनों को एक चीज के लिए बधाई। क्या बधाई है? अब धीरे धीरे करके जैसे इंडिया और यूएस की डील के जो कंडीशंस हैं वो बाहर आ रही हैं, उसमें बहुत क्लियर हो रहा है कि आखिर में ये एडवांटेज इंडिया है सर। भारत को एडवांटेज है बहुत बड़ा, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। और जाकर के मैं ये भी आपको बता दूं कि कहीं पर भी हमारे किसानों के खिलाफ या किसी और चीज़ के खिलाफ कुछ नहीं होने वाला। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आप कंडीशंस पढ़ लीजिए ना जो नई नई आई हैं। इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक। और तीसरी चीज़ क्या है कि यूएस की पूरी मार्केट जो बाय द वे पहले 40% के 45% बंद थी इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए, सब कुछ खुल गई है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस। लेट्स बी वेरी क्लियर। अविरल मलिक साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, हमारे मैन्युफैक्चरर्स, हमारे ग्रोअर्स, हमारे जो एग्रीकल्चर में जो इन्वॉल्व हैं, फूड प्रोसेसिंग में जो इन्वॉल्व हैं, अगर हमारे लोग अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे तो पूरी दुनिया में बिकेंगे। दैट इज वन। दूसरी चीज, ब्राजील के प्रेसिडेंट आ रहे हैं सर यहाँ पे, 260 बिजनेस टाइकून्स के साथ ब्राजील के, वो यहाँ पर आ रहे हैं मोदी जी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए। फैंटास्टिक सर। अब आप बोलें सर, डॉक्टर अविरल मलिक प्लीज बोलिए सर। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से भारत का और जिस प्रकार से आपने कहा किसानों का, तो निश्चित रूप से किसानों का हित सर्वोपरि है और किसान के हित के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इस चीज की गौर पूर्ण रूप से हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट हो रही है। मैं समझता हूँ स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और जहां तक विषय एक तरीके से ग्राउंड लेवल का, तो जितनी भी चीजें हैं वो ग्राउंड लेवल पे 100% उसका इंप्लीमेंटेशन किसानों के लिए हितकारी रहे, इसकी भी हम लोग चिंता निरंतर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय अगर पर्टिकुलरली इस बात गहनता के साथ अगर कर ली जाए देश के विकास की, देश के उत्थान की और यूएस इंडिया डील की एक प्रकार से अगर बात कर ली जाए तो स्पष्ट है। और ये कुछ लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, नैरेटिव बिल्डिंग का एक प्रकार से काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से गलत है। और झुकना किसे पड़ा? झुकना अमेरिका को पड़ा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसमें नजर आ रहा है। और 50% से 18% पे अमेरिका लेकर के आया, स्पष्ट सबने देखा। बावजूद इसके भारत को नीचा दिखाने का प्रयास कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक हित के लिए कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये पूर्ण रूप से निराधार है, असत्य है। और जहां तक एक तरीके से 32% डिक्रीज करने का सवाल है, तो आखिर किसने किया? वो यूएस ने किया। और उसके बावजूद कह रहा है कि इंडिया झुका। अब इंडिया कैसे झुक गया जब अमेरिका ने
अमेरिका को झुकना पड़ा 50% से 18% पे खुद ही आना पड़ गया, तो इंडिया कैसे झुका, ये सवाल समझ में नहीं आ रहा आखिर इनका। जबरदस्त सर, मलिक जी, जबरदस्त। बार बार मोदी साहब पे आरोप लग रहा है कंटिन्यूसली। अभी कांग्रेस ने आंकड़ा निकाला है 2021 से लेकर 2025 तक मोदी जी के फॉरेन विजिट्स हैज कॉस्ट इंडिया 462 करोड़। 462 करोड़ का खर्चा हो गया मोदी साहब के फॉरेन विजिट्स के 2021 से लेकर 2025। बट क्या ये इस प्रकार से तय करना सही है? वैल्यू ऐड किया कि नहीं? हाउ डू यू सी दिस? हाउ डू यू सी कितने का फायदा हुआ? इन लोगों को ये पूछना चाहिए कितने का फायदा हुआ। ये इतने का खर्चा हुआ लेकिन कितने का फायदा हुआ, सवाल इन लोगों का ये होना चाहिए। लेकिन जो सवाल ये लोग कर रहे हैं ये पूर्ण रूप से गलत है। और विदेश यात्राओं की अगर बात कर ली जाए, यात्राओं की बात कर ली जाए, जब यात्रा होती है, जब डोर लगता है एक प्रकार से, जब विदेश यात्रा होती है तो उसमें खर्च आता है। ऐसा नहीं है कि एक तरीके से हवाई जहाज किसी बिना किसी फ्यूल के चल रहा है, या एक तरीके से कोई मैनेजमेंट नहीं चाहिए, कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, वो उसमें हवाई जहाज में पानी डालेंगे चल जाएगा, ऐसा तो संभव है नहीं। तो खर्चा तो आएगा। अब खर्चा आएगा तो उससे लाभ कितना हो रहा है, बेनिफिट इंडिया को कितना हो रहा है, इसका सवाल इनका होना चाहिए था। लेकिन उस पर डिस्कशन क्यों हो सर? आप मुझे एक चीज बताइए, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो किसी फर्म के सीईओ थोड़ी हैं, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उनको थोड़ी देना है सर। हर चीज जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में मेजर नहीं की जाती है, खर्चे और मुनाफे में मेजर नहीं की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इतने बरसों के बाद, मतलब कि इंदिरा जी के बाद, इंदिरा जी 82 या 83 में गई थी साइप्रस, उसके बाद मोदी जी गए 2025 में। सर आप मुझे बताइए वो क्यों गए? सबको मालूम होना चाहिए। साइप्रस जाकर के वहां के लोगों को मिलकर के, प्रधानमंत्री को मिलकर के, ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर को मिलकर के एक मैसेज भेजा गया टर्की को, तुर्की को, कि भैया हम यहां साइप्रस के साथ खड़े हैं, जरा सीधे हो जाओ। आप पाकिस्तान के साथ आप जो खड़े हैं, साइप्रस हैज अ फ्रेंड इन इंडिया। और अभी अभी ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर यहां पर आए थे, ही सॉ द एंटायर डिफेंस इक्विपमेंट दैट वी हैव गॉट। ग्रीस ने रिक्वेस्ट करी है भाई आप हमें बेचिए। सर आर्मीनिया, they have bought only Indian products। अभी अभी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उधर गए थे, पूरी परेड में सिर्फ भारत का डिफेंस इक्विपमेंट दिखाया उन्होंने, आर्मीनिया ने अपनी परेड में। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस हर जगह नहीं होता है, ये सवाल ही गलत है। मतलब ये कैसा, ये तो बचकाना सवाल हो गया। कोई मोदी जी बिजनेसमैन थोड़ी हैं, भारत क्या बिजनेस है? आप मुझे बताइए अविरल मलिक साहब, हमारा प्रधानमंत्री क्या बात है, हमारा प्रधानमंत्री बनिया है। आपका सवाल है कि भारत किसी रूप में बिजनेस नहीं है और ये कोई फर्म तो चल नहीं रही है। जी दुरुस्त बात है, बिल्कुल बिल्कुल, ये फर्म चल रही है। अगर देश चलाने की बात है तो ये फर्म कहां से चल रही थी भाई, जो इस प्रकार के कुछ लोग सवाल करते हैं। और दूसरी चीज, इससे बेनिफिट कितना हुआ आपने अभी बताया, इस प्रकार से उदाहरण देके इससे कितना बेनिफिट हुआ, इस पे सवाल करना चाहिए था। लेकिन इस पे सवाल नहीं करेंगे बेनिफिट कितना हुआ, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक बेनिफिट कितना हुआ, सोशल बेनिफिट कितना हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे बेनिफिट कितना हुआ, और उसके साथ साथ अगर एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी कितनी मजबूत हुई, दूसरे देशों से कितने मजबूत संबंध हुए, इस पे चर्चा नहीं होगी। चर्चा ये होगी कितना फ्यूल लग गया, और सिक्योरिटी गार्ड कितना तनख्वाह ले रहा था, और उसके साथ साथ जो उल्टे सीधे सवाल है, इस प्रकार के सवाल विपक्ष के लोग करते हैं, इसीलिए इन्हें वोट नहीं मिलती और बहुत हास्यास्पद सवाल करते हैं। बट आपको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी अगर पूछता है कि 4 साल या 5 साल में 462 करोड़ का कॉस्ट हो गया मोदी जी का, व्हाट आर द बेनिफिट्स, आपको तो जवाब देना पड़ेगा। बेनिफिट्स 10 टाइम्स है, 20 टाइम्स है, क्या है, ये तो आखिरकार देना ही पड़ेगा। मलिक साहब, अभी देखिए इन चीजों का तो कोई लॉजिक नहीं है ना। अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा है, एसपीजी सिक्योरिटी है। अब ये कल को कहेंगे कि एसपीजी पे इतना खर्चा आता है तो माननीय मोदी जी इसका फायदा उठा रहे हैं, और सिक्योरिटी होनी नहीं चाहिए, ये सिक्योरिटी विड्रॉ करके एक दो सिपाही दे देना चाहिए। आप ऐसे सवाल अगर ये करेंगे तो जनता में क्या मैसेज आएगा? जनता में स्पष्ट मैसेज आएगा इनके खिलाफ, और जनता इन्हें कभी वोट नहीं देगी। दुरुस्त बात है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये एक और आती है कि जहां तक के मोदी जी का प्रश्न है, और ये मतलब दूसरी चीज है, मैं अभी सुन रहा था पार्लियामेंट के अंदर, हमारे वैसे मित्र हैं हमारे, एक ज़माने में हुआ करते थे, आजकल हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, आजकल तो बड़े आदमी बन गए। उनका नाम है राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला साहब, वो एक उनकी वाइफ जो है वो चैनल भी चलाती है, न्यूज़ 24 करके चैनल चलाती है। वैसे वो ब्रदर इन लॉ हैं, आपके बड़े लीडर हैं, उनके सांडू भी हैं, उनके साले साहब हैं उनके। सर ऐसा है, वो बोल रहे हैं कि क्या है कि
भारत विश्व गुरु बन गया है, हमने आश्रम खोल के रखा हुआ है लेकिन कोई शिष्य नहीं है, ऐसा बोला। हाँ हाँ हो, बड़ा जोक बन गया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन कौन से देश हमारे साथ खड़े थे। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पता नहीं आपको याद होगा, मैंने तो बहुत पढ़ा इसके बारे में, मुझे तो याद नहीं है। सोवियत यूनियन के अलावा 1971 में कौन सा देश हमारे साथ खड़ा था, मुझे तो याद नहीं है। एक देश ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दी, ना यूके ने, ना जर्मनी ने, ना फ्रांस ने, ना किसी और ने। जब दो देशों के बीच में जंग होती है सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आती है कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से इसको सुलझा लिया जाए। कोई ये नहीं बोलता किसी को हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, मारो इनको। व्हाट डू दे एक्सपेक्ट कि मोदी जी जिस जिस देश में गए हैं वहां पे वो देश वाले ये बोलेंगे कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं, चलो पाकिस्तान पे हम हमला करते हैं। सर मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है, सिर्फ 2 या 3 देशों को छोड़ करके सवाल यह पूछना चाहिए कितने देशों ने भारत के खिलाफ कुछ बोला, आप बताइए। वही तुर्की, अजरबैजान और शायद एक और देश है, बस दैट्स इट। आई थिंक इट वाज somebody from Southeast Asia, not even Malaysia. There were just 3 nations. बाकी जितने भी देश हैं 93 कंट्रीज पूरे की पूरी दुनिया में, सब लोग चुप रहे। साइलेंस इज ऑल्सो एन एविडेंस ऑफ सपोर्ट। अगर आपके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा इसका मतलब यह है कि आपके साथ खड़ा है। तो ये पहली बार मैंने देखा है कि कोई भी विपक्ष जो है इस किस्म का सवाल कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो खड़े होकर कभी नहीं बोला पार्लियामेंट में इंदिरा जी से, कौन सा देश है जो हमारे साथ था 1971 में, जो हमारी लड़ाई हुई है पाकिस्तान के साथ, या कारगिल युद्ध में कितने देश बोले हमारे पक्ष में? कोई नहीं बोला सर। अब आप ये बताइए ऐसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? डॉक्टर अविरल मलिक प्लीज। देखिए सवाल का जहां तक विषय, सवाल किसने किया वो मैंने पूरा क्लिपिंग देखा, पूरी वीडियो मैंने लाइव देखी है, वो राजीव शुक्ला जी की। तो राजीव शुक्ला जी जो जिस प्रकार की बात उसमें कर रहे हैं, केवल वो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जैसे हंसाने के लिए वो कर रहे हैं अपने लोगों को। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। और आज कितने देश हमारे साथ हैं, कितने देश हमारे खिलाफ है, उसका कोई आंकड़ा दे, ऐसा भी कुछ उसमें नजर नहीं आ रहा। कितने देश हमारे खिलाफ बोलते हैं, उसका भी कोई आंकड़ा उसमें नहीं है। कितना बेनिफिट कितना लॉस हमें आज के समय में हो रहा है, इसका भी कोई उसमें डिटेल नहीं, डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो मैं समझता हूं इन लोगों को डाटा से कोई लेना देना नहीं है। ये इस प्रकार के जोक्स बोलते हैं या अपनी तरफ से तो एक स्लोगन बोलते हैं कि जो सीधा जनता को टच करे, वो जनता तक जाए, ऐसी बात बोली जाए, विदाउट डाटा की हो, विदाउट आंकड़ों की हो, बिना किसी तथ्य से पैर की हो, लेकिन वो जनता तक जानी चाहिए और जनता के दिलो दिमाग में बैठनी चाहिए। लेकिन जनता इतनी इस प्रकार की नहीं है कि इनकी इन बातों को सुनेगी और उसके आधार पर वोट करेगी। जनता बहुत अवेयर है, पॉलिटिकली मैच्योर है, सब कुछ जानती है कि किस तरीके से आज देश मजबूत हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, निरंतर विकसित हो रहा है। और विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है वो पूरे दुनिया में उसकी गूंज है, स्पष्ट नजर आ रहा है। डॉक्टर अविरल मलिक जी, बात यह है कि जब भी राहुल गांधी जी, आप तो नंबर 1 बोलने नहीं देते उनको, राहुल गांधी जी को आप बोलने नहीं देते, लोकसभा में बोलने नहीं देते, बाहर बोलने नहीं देते। और जब भी बोलते हैं राहुल गांधी जी, आप बोलते हैं सोरोस फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया, आप कहते हैं फोर्ड फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया, आप कह रहे हैं कि इनको यूएस एड से पैसा मिला है राहुल गांधी जी को, फॉरेन ट्रेवल करके उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं देश के खिलाफ बात करने के लिए, एंटी इंडिया स्टांस करने के लिए। क्या ये लोकतंत्र को क्या आप कमजोर नहीं कर रहे डॉक्टर मलिक साहब? आर यू नॉट वीकनिंग द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी? बिल्कुल, देखिए विपक्ष तो लगा हुआ है कि किस तरीके से लोकतंत्र को कमजोर किया जाए और किस तरीके से लोकतंत्र को पीछे खिसकाने का प्रयास किया जाए। और जहां तक विषय लोकतंत्र का, तो ये 4 स्तंभ है मेनली। और अगर इसमें जुडिशरी की बात कर ली जाए, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इनके पक्ष में फैसला देता है, देश सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है। खिलाफ फैसला आ गया तो लोकतंत्र खतरे में है। एग्जीक्यूटिव को तो कुछ मानते ही नहीं है जब जुडिशरी के साथ ये बर्ताव है। रही बात लेजिस्लेचर की, तो लेजिस्लेचर में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संबंध में किस प्रकार की टिप्पणियां होती हैं, क्या कुछ होता है, सबके मध्य में है। चौथा स्तंभ है मीडिया। मीडिया के संबंध में, ये मीडिया को मोदी मीडिया कह देते हैं,
तो लोकतंत्र के चारों स्तंभों का अपमान करना ये विपक्ष की फितरत है, और यही आज के समय का, आज के जमाने का विपक्ष है। ये नया, देखिए अगर इन्हें आगे बढ़ना है विपक्ष के लोगों को, नेशन नाउ टेलीविजन चैनल के माध्यम से, आपके टेलीविजन चैनल के माध्यम से मेरा पूर्ण रूप से आपसे आग्रह है इस विषय को लेके। जहां तक विषय अगर विपक्ष की बात कर ली जाए तो इन्हें सलाह होनी चाहिए इस चीज को लेके कि भाई विकास पे बात करें, डेवलपमेंट पे बात करें, रोजगार पे बात करें, लेकिन ये विकास पे बात नहीं करेंगे, किसान पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, जमीन स्तर की बात नहीं करेंगे, गांव गरीब की बात नहीं करेंगे, कोई चर्चा नहीं करनी। ये चर्चा करेंगे ऐसे मुद्दों का जिससे कि जनता से कोई लेना देना नहीं है। कभी ईवीएम का मुद्दा उठा लेंगे, कभी एसआईआर का मुद्दा उठा लेंगे, कभी वोट चोर गद्दी छोड़े के नारा लगाते रहेंगे, ये जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई सरपैर नहीं है। तो इस टाइप के एक प्रकार से कारनामे कर रहे हैं जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं है, और आम आदमी को लेना देना किससे है? आवास योजना से, उज्ज्वला योजना से, सौभाग्य योजना से, जनधन योजना से, शौचालय के निर्माण से, पक्के मकान के निर्माण से। जी, आपके रविशंकर प्रसाद जी के साले साहब राजीव शुक्ला साहब ने जो कुछ कहा उसके ऊपर एक छोटी सी चीज है, मुकेश गांधी साहब सुनने वाली बात है। इंडिया हैज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूरोपियन यूनियन, दैट मीन्स 27 नेशंस, इंक्लूडिंग जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन एंड Portugal and so on and so forth. And with Portugal, we are going to be signing a separate FTA agreement. With the UK, with EFTA, there's something called the EFTA. I don't know whether you are aware of this. This is the European Free Trade Association. That consists of Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein. इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी TEPA एग्रीमेंट हो चुकी है, and it has been in force from October 2025. ASEAN, CECA, this has been in force since 2024. United Arab Emirates, in force since May 2022. Australia, ECTA. It's a fantastic agreement with Australia, with Japan, with South Korea, with Mauritius, with Sri Lanka and with SAFTA, that is the SAARC countries, including Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal and Sri Lanka. और अभी तो खैर बांग्लादेश के साथ we'll have to renegotiate a new agreement, a new government has come over there. And I hope they will be more sensible. But all I am saying is, जब लोग ये बोलते हैं मुकेश गांधी साहब कि भारत के साथ कोई नहीं खड़ा, ये जो 14 के 15 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और मोस्ट प्रेफर्ड नेशन स्टेटस की जो एग्रीमेंट साइन करी है मोदी जी ने, तो ये देश क्या हमारे खिलाफ है? आपसे पूछ रहा हूं सर, आप बताइए मुकेश गांधी साहब। बिल्कुल नहीं। आज ये जो कांग्रेस का जो ग्लोबल प्रचार है और जो नैरेटिव वो फिक्स करना चाहते हैं वो गलत है। पर सर राजीव जी, मैं इसके उपरांत मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने तो अपने एक एप्लीकेशन से, अपनी कर्मठ प्रयोग से, कार्यक्रमों से पूरे नेशन को, हिंदुस्तान को, भारत को बहुत आगे बढ़ाया है, और पूरे वर्ल्ड में आज हमारा एक दबदबा, हमारी एक पोजीशन बहुत ही जबरदस्त हो गई है। पर ये जो अभी जो लोकसभा में जो राहुल गांधी का जो ये चल रहा है ना लफड़ा, ये लफड़ा ही बोलते हैं आज हमारी पब्लिक की भाषा में। तो ये क्या है कि भारतीय संसद में इन्होंने एक तमाशे का मंच बना दिया है, हमारी संसद को तमाशे का मंच बना दिया है, और भारत में जनतंत्र की विश्वासार्हता आज कम करने का वो प्रयत्न कर रहे हैं। और वो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी संसद नहीं है, विरोधी पक्ष के नेता नहीं है, पर एक राजा है। वो राजा की शेखी हमको सहन करनी चाहिए, और वो हमारी संसद, हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट क्यों सहन कर रही है वो भी मुझे पता नहीं चलता है। और आज एक बात है कि किरण रिजिजू जी ने एक विशेष अधिकार की मांग की थी, और बाद में ये पूरा मुसद्दा उन्होंने वापस ले लिया। क्यों ले लिया? मुझे प्रश्न यहाँ ये होता है कि बीजेपी कांग्रेस को एक्सपोज करके उनके सामने क्यों एक्शन नहीं लेती है? जब राहुल गांधी इतना देश विरोधी अप्रोच ले रहे हैं तो उनके ऊपर उनको एक्सपोज करके उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ली जाती है? इनमें बीजेपी का, हमारे प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री जी का क्या पूरा रवैया है वो मुझे, माने आम लोगों को आज पता नहीं चलता है कि क्यों हो रहा है। सर इसमें लॉजिक है, लॉजिकल है। देखिए सर एक मिनट सर, एक बात सुनिए। जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट थी उस टाइम में इंदिरा गांधी जी ने ऐसा वर्तन किया था
तो उनको डिबार कर किया गया था, उनको सस्पेंशन की नोटिस मिली थी और सस्पेंड किया गया था, और वो वापस आ गई। तो राहुल गांधी को सस्पेंड करने में ये क्यों इतना डरते हैं? क्योंकि राहुल गांधी वापस आएंगे, राहुल गांधी जी वापस आएंगे सर। निशिकांत दुबे का मोशन है ना, इसलिए मतलब दोनों डबल हो जाएंगे। निशिकांत दुबे का मोशन चल रहा है, उससे सर मोशन कहाँ हुआ? सर मोशन नहीं हुआ। निशिकांत दुबे ने पूरी बुक्स का ढगला लेकर के आ गए, सब बात कर दी, और बाद में निशिकांत दुबे जी स्क्रीन पे आते ही नहीं है सर। नहीं, वो और किरण रिजिजू जी ने पहले प्रस्ताव डाला और बाद में वो विड्रॉ कर लिया। मैं तो कहता हूं कि भाई मैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता को पूछता हूं, सर भारतीय जनता पार्टी बहुत अक्लमंद है। की गवर्नमेंट सर भारतीय जनता पार्टी बहुत अक्लमंद है सर, उनको मालूम है जितना राहुल सर जितना समझना है। अरे सर जितना राहुल गांधी को बोलने देंगे उतनी बीजेपी की सीट्स बढ़ेंगी सर। क्या बात कर रहे हो सर आप? राहुल गांधी जो पार्लियामेंट में बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी की उतनी स्ट्रेंथ बढ़ती है सर। क्या बोल रहे हैं आप? हाउ कैन दे स्टॉप इट सर? द बिगेस्ट एसेट टुडे फॉर बीजेपी इज मिस्टर राहुल गांधी। इन राहुल गांधी, हाँ तो वो क्यों वो सर भावुक हो करके आपसे और बीजेपी के, बट मुकेश गांधी साहब, मैं आपसे बीजेपी के प्रवक्ता से मैं यही पूछना चाहता हूं मुकेश गांधी यही साहब। सुनना चाहता था। अच्छा, आई वांट टू आस्क यू, राहुल गांधी जी टॉक्ड अबाउट हाउ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फूड सिक्योरिटी के लिए जो जंग छेड़ा था, एक बिल लेके आया था फूड सिक्योरिटी। इंडियन नेशनल कांग्रेस कंसर्न अबाउट द पुअर, गरीबों का हित के बारे में हमेशा इंडियन नेशनल, राहुल गांधी का कहना है, कांग्रेस ने सोचा है। मोदी ने कॉम्प्रोमाइज किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीटेड फार्मर्स, राहुल जी का स्टेटमेंट है सवेरे का, ही हैज बीटेड फार्मर्स। फिर क्रॉप्स को मेंशन करते हैं, कॉटन, सोयाबीन, एप्पल, फ्रूट गोज, इन सब के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस है जो फूड सिक्योरिटी लेके आया, एक तरफ है मोदी जी है कि किसानों को पूरे मार्केट खोलकर परेशान कर दिया है। गांधी साहब, मुकेश गांधी साहब, सर ये राहुल गांधी नरेशन बनाने में और रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में फूड एक्ट के बारे में, आज अगर नरेंद्र मोदी जी अगर सिंसियर नहीं होते तो हमारा डील तो कब का हो गया होता अमेरिका के साथ में। उन्होंने हमारे किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे डेयरी प्रोजेक्ट को, हमारे मछुआरे को, ये सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो इतना लंबा टाइम खींचा। और आज जब सब हो गया है और मार्च में सब अनाउंसमेंट होने वाली है, तब अभी शादी होने से पहले राहुल गांधी ऐसा ही बोलते हैं कि लड़की तो अच्छी है पर गुणियल नहीं है, उसका घराना अच्छा नहीं है। अरे शादी हमने सोच करके की है भैया, तुम कौन बोलने वाले हो बीच में? और शादी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के काम मत करो। जो काम हो रहा है ना वो काम देखो और उससे राष्ट्र को क्या फायदा होने वाला है वो भी समझो जरा। लेकिन एक चीज तो है सर, सीधी सादी बात है, एक चीज तो है, हियर आई एग्री विद शशि थरूर साहब एंड आई हैव बीन सेइंग इट ऑल अलोंग। राहुल गांधी जी जो भी बोले वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है सर। अगर मान लीजिए वो रूल्स का उल्लंघन भी कर रहे हैं आपके मुताबिक, टेक्निकली रूल्स का चलो उल्लंघन हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज ऑपोजिट साइड से ना जाने क्या कुछ कोट हो जाता है और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेते स्पीकर साहब, कोई कुछ नहीं बोलता है। मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी जी अगर नरावने साहब की किताब जो प्रकाशित नहीं हुई है पब्लिशर के मुताबिक लेकिन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उससे अगर कुछ कोट कर रहे हैं और उसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, सर पार्लियामेंट की एक प्रथा है कि आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। जो भी चीज अगर आप कोट कर रहे हैं, अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है कि भाई ये गलत है, भाई मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूं और इसमें अगर कुछ गलत पाया जाए तो आप मेरे खिलाफ सजा दे सकते हैं, तो आप उसको प्रिविलेजेस कमेटी के सामने भेजिए और अगर उन्होंने गलत कुछ बोला है तो थ्रो आउट राहुल गांधी, सस्पेंड कीजिए राहुल गांधी को या पनिश कीजिए किसी भी तरीके से। व्हाई डू यू हैव टू मेक हिम स्टॉप? व्हाई डू यू हैव टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम स्पीकिंग? नाउ दैट आई डोंट एग्री विद इट ऑल। एज पार्लियामेंट एवरीबडी शुड बी अलाउड टू स्पीक, और वो कांग्रेस की गलती है अगर वो बजट पे नहीं बोलना चाहते, ना बोले सर। सारी दुनिया सुनना चाहती है कि बजट पे क्यों नहीं बोल रहे। उनको तो बल्कि ये बोलना चाहिए था कि सिर्फ आपने 12 लाख पे लिमिट क्यों रखी हुई है इनकम टैक्स की, आप उसको बढ़ा करके एटलीस्ट 15 लाख तो करिए। मिडिल क्लास का जहां तक सवाल है, मिडिल क्लास को कोई रिलीफ तो दीजिए। मिडिल क्लास हमेशा जीएसटी के पूरे भार तले, मिडिल क्लास जो है उसके पास कोई सर सैलरीड क्लास जो है दे हैव नो एस्केप रूट। बिजनेसमैन जो है, जैसे आप जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सर, आप तो मल्टी बिलियनर हैं, यू लिव एट अल्टमाउंट रोड, मतलब आपका घर ही होगा 240 करोड़ का अभी,
आप जैसे लोगों के पास तो सर बहुत तरीके हैं, इधर से टैक्स बचा लो, उधर से टैक्स बचा लो, उधर। वो मिडिल क्लास वाला क्या करेगा? उसका पहले तो टीडीएस कट जाता है जब सैलरी आती है, बैंक में जाता है फिर टीडीएस कट जाता है, एफडी आता है, एफडी के ऊपर भी टीडीएस कट जाता है, वो जाएगा कहां बेचारा? देयर मस्ट बी सम रिलीफ फॉर देम सर। पहले जमाने में आई स्टिल रिमेंबर, जो मिडिल क्लास सैलरी क्लास होती थी वो सीधा बैंक में जाते थे और सीधा जाकर के फिक्स्ड डिपॉजिट लगा देते थे और 12% सर इंटरेस्ट मिलता था। आज की तारीख में सर 5% इंटरेस्ट, उस पर कौन जी सकता है? आप बताइए ना मुकेश गांधी साहब, डोंट यू थिंक द मिडिल क्लास डिजर्व्स अ रिवॉर्ड फॉर पेइंग टैक्स रेगुलरली एंड ऑनेस्टली? आप बताइए मुकेश गांधी साहब। सर, लेनिन और मार्क्स की थियोरी के मुताबिक जब आप मिडिल क्लास को क्रश करने का प्रयत्न करते हो ना, तब धीरे धीरे देश में क्रांति की शुरुआत होती है। ये जीएसटी का मामला बहुत अच्छा है, पर आपने जो वर्णन किया उस तरह से मिडिल क्लास को बहुत ही सहन करना पड़ता है। टूथपेस्ट से लेकर के हर चीज के अंदर जीएसटी उनको भरना पड़ता है और उनकी इनकम होती है लिमिटेड, और उसके सामने इतने जीएसटी में पैसे चले जाते हैं। अगर वो गिनने को आप बैठो, एक शादी रेस्टोरेंट में आदमी जाके आता है खाना खा के तो 5% जीएसटी दे देना पड़ता है। इस तरह से लेकर के हर चीज के अंदर, बच्चों की स्टेशनरी बुक लेने को जाओ तो वहां भी जीएसटी है, हर जगह पे जीएसटी है। जीएसटी का कंसेप्ट अच्छा है, हमारे निर्मला सीतारामन जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, उनका रेवेन्यू बहुत बड़ा है, पर हमारे मध्यम वर्ग के लोगों को इनके सामने कोई फायदा नहीं सर, एक बहुत बड़ी चीज हुई है इस बार। एटलीस्ट आप देखो तो सीनियर सिटीजन जो है, अब वो 65-70, उनको कोई भत्ता भी नहीं मिलता है, नहीं मिलता सर। जब तक वो पूरे जिंदगी भर जीएसटी में पैसा भरता रहता है तो उनको क्या मिलता है? नौकरी में से नहीं, उसमें से नहीं, किसी में से नहीं। और अभी जो डिसेबल्ड पेंशन को सर, जो डिसेबिलिटी कॉम्पेंसेशन है उसको जो अब टैक्स करने की बात चल रही है, आई होप दे विड्रॉ इट सर, बिकॉज पूरी आर्म्ड फोर्सेस में बहुत रोष है इसको लेकर के, बहुत गुस्सा है। मैं आपको बता रहा हूं सर, जो डिसेबिलिटी सर, ये आर्म्ड फोर्स की मैटर को, हाँ सर राजीव जी, ये मैटर को आप उठाइए, बात कीजिए, क्योंकि ये मैटर अगर बीजेपी सॉर्ट आउट नहीं करती है तो देश में बहुत बड़ा हंगामा होगा। राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा। सर विड्रॉ करेंगे 100%। फुलिश मूव, लेट्स बी वेरी क्लियर, बट आई वांट टू टेल यू समथिंग एल्स। डॉक्टर अविरल मलिक, आपको जानकर के ये खुशी होगी कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें निर्मला सीतारमण जी की, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसकी कलेक्शन कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा हुई है, पहली बार भारत में। क्रेडिट गोज सर्टेनली टू द बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को पर्सनल इनकम टैक्स के घेरे में लेकर के आए हैं। लेकिन जिन लोगों ने टैक्स दिया है, पर्सनल इनकम टैक्स जिन लोगों ने दिया है सर, सैलरीड क्लास जो है, उनको कुछ तो मिलना चाहिए ना अविरल मलिक साहब, सम बेनिफिट शुड बी गिवन। एफडी के रेट से इंक्रीज कर दो सर। जिस तरीके से मार्केट में धांधली होती है, जिस तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव की चीज होती है, लोग डर जाते हैं, उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। सीधी बात है सर, यू कांट एक्सपेक्ट द मिडिल क्लास टू गो इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। आप मुझे, और सर म्यूचुअल फंड में तो कितना टेंशन है। करेक्ट है, म्यूचुअल, यू डोंट नो सर, 10 साल तक वेट करो तब जाकर के शायद कुछ मिले। बट आई वांट टू आस्क डॉक्टर अविरल मलिक, आपको लगता नहीं है एक तो डिसेबिलिटी पेंशन जो एक सर्विसमैन को मिलती है सर, आज तक 100 साल से कभी उस पर टैक्स नहीं लगा, पहली बार टैक्स लगाने की बात की जा रही है। Even the disability compensation is also being taxed. उसमें भी टैक्स, how can you tax disability compensation? That's terrible. आदमी का पैर जाता है, उसको कॉम्पेंसेट कर रहे हो, उसमें आप इनकम टैक्स काट के देंगे? मलिक साहब, ये क्या सर? देश के लिए हुआ है उसको, देश के लिए कुर्बानी किसके लिए, टांग का कुर्बानी किसके लिए दिया? आप उसमें भी इनकम टैक्स काट के उनको देंगे कॉम्पेंसेशन? बताइए डॉक्टर मलिक, प्लीज गो अहेड सर। जी देखिए, आपने मध्यम वर्गीय के हित के बारे में सोचने का पूर्ण रूप से काम किया और मध्यम वर्गीय के हित सुरक्षित करने के लिए आपने बात की। जी जी मेरी आ रही है सर, फर्स्ट क्लास आ रही है। Yes, we can hear you. जी
देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से मीडियम क्लास का और टैक्स पेयर का और उसके साथ साथ जो नौकरी पेशा है उन लोगों का, तो मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से वो टैक्स पेयर्स हैं और सभी सम्मानित हैं, इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जहां तक विषय किस तरीके से टैक्स कलेक्शन की अगर बात कर जाए और उसके साथ साथ बात की जाए उन्हें सहूलियत की, किस प्रकार से उन्हें सहूलियत मिले, तो ये हमारी सरकार की प्रायोरिटी में शामिल है। और जहां तक विषय एक तरीके से टैक्स पेयर का, तो उनका पूर्ण रूप से टैक्स पेयर का सम्मान है और उनके हितों को संरक्षित और सुरक्षित करना निश्चित रूप से हमारा दायित्व है और वित्त मंत्रालय का, हमारी सरकार का इसमें दायित्व है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जहां तक विषय टैक्स पेयर का है, तो उन्हीं के टैक्स के माध्यम से सभी, अगर तनख्वाहों की बात करी जाए, उसी टैक्स पेयर के पैसे से पूर्ण रूप से तनख्वाह जाती है, उसी टैक्स पेयर के पैसे से देश का विकास होता है और टैक्स पेयर मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण अंग है हमारे देश के विकास में। You know, Sir, what about Malik, sir, I want to Fauj? ask you something about, yeah. He is not talking about the army, sir. He Please. is not- सर फौज के बारे में बताइए ना सर, आपको बल्कि लिखना चाहिए, हम तो लिख ही रहे हैं, आपको भी लिखना चाहिए प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को। Compensation. सर डिसेबिलिटी कॉम्पेंसेशन No को टैक्स tax. मत करिए सर, No tax. आई एम रियली टेलिंग यू, ये बहुत बड़ी इसमें- रिजेंटमेंट इसमें लेकर आएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें चर्चा होगी और जो भी आवश्यक कदम होगा उठाया जाएगा। मोदी जी, योगी जी, चुनाव के वक्त बिल्कुल बिल्कुल, जिस देखिए, प्रकार से मैं आ रहा हूं, बजाज साहब आपके सवाल का विषय और सुझाव का विषय है, तो पूर्ण रूप से सुझाव के आधार पे कदम उठाया जाएगा, सुझाव लिया जाएगा, इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारे सुझाव लिए जाने महत्वपूर्ण है और ये 100% ये सुझाव जाएगा, लिया जाएगा, इस पे कार्रवाई होगी। और मोदी ये जी- किसी ब्यूरोक्रेट का आइडिया है सर, फिर बोल रहा हूं आपको जिन्होंने हराया 2024 में, आपको 303 से 240 पर लाए, ये ब्यूरोक्रेट्स लेकर के आए। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, मोदी बोलिए जी, सर। योगी जी, जब भी Yes, इलेक्शन, yes. अभी योगी का इलेक्शन, योगी जी इलेक्शन है 2027 नेक्स्ट ईयर, अब आपने वंदे मातरम कंपलसरी कर दिया, सरकार ने कानून बना दिया कि वंदे मातरम पहले आपका, यही बीजेपी का जो नारा है, इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, बोलना होगा, गाना होगा। यू कम्युनलाइजिंग, डॉक्टर मलिक साहब, इतने आप पूरे डिवाइड जो लाइंस है, कम्युनलाइज, पोलराइज कर रहे हो, क्या ये ठीक है? देखिए, मैं ये शायद कल की बात है, मुस्लिम कम्युनिटी के एक बड़े व्यक्ति हैं, उनसे बात इस विषय पे कर रहा था, तो मैं समझता हूं जहां तक मुस्लिम कम्युनिटी का सवाल है, तो मुस्लिम कम्युनिटी को एक तरीके से दिखाना कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी के साथ बहुत आपत्तिजनक कुछ व्यवहार हो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये कम्युनलाइज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये देश का सवाल है। ये भारत माता की जय कह देना, वंदे मातरम कह देना और उसके साथ साथ राष्ट्रगान गाना, राष्ट्रगीत गाना, वंदे मातरम गाना, जनगण मन गाना, तो मैं समझता हूं इसमें कहां से कोई आपत्ति है और कहां से इसमें हिंदू मुस्लिम है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सबको हमें एक साथ लेके चलने वाले लोग हैं। जाट गुर्जर राजपूत क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण SC ST OBC जनरल सबको एकजुट करके चल रहे हैं, हम एक प्रकार से उसका कार्य कर रहे हैं चलने का। अगर केंद्र सरकार की बात की जाए, राज्य सरकारों की बात की जाए, पूर्ण रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने वाले हम लोग हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जो नारा है वो किस प्रकार से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो, मुमताज हो, इसकी हम चिंता करते हैं, ना कि किसी एक प्रकार से कॉमलाइज करने का या नफरत का माहौल पैदा करने का। ये कार्य भारतीय जनता पार्टी ने ना किसी रूप में कभी किया है, ना एक प्रकार से करेगी और न कर रही है, ये स्पष्ट नजर आ रहा है। मुकेश गांधी साहब, विपक्ष का तो विपक्ष तो आरोप लगाता रहा है, लगाता रहेगा और यही विपक्ष के लोग हैं जो मुस्लिम्स को भड़काने का काम करते हैं। वंदे मातरम में समस्या क्या है? अगर वंदे मातरम पूरा गाया जाता है तो कहां किस मुसलमान को समस्या है? मेरे संपर्क में तो ऐसा कोई मुसलमान है नहीं जिससे समस्या हो। लेकिन सर वंदे मातरम सबसे पहले, वंदे मातरम सबसे पहले तो कांग्रेस की अधिवेशन में गाया गया था ना 1896 में, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने खुद गाया था। उसके बाद हर कांग्रेस सेशन में गाया गया और उसके बाद अंग्रेजों ने आकर के इसको बैन कर दिया और फिर 1947 के बाद ये तय हुआ, और उसपे तो सब प्रोटोकॉल है कि हर सेशन के पहले वंदे मातरम होगा। हमारे यहाँ पे BMC में, और फिर ये मुसलमानों के लिए खतरा एक तरीके से बता दिया कुछ लोगों ने इसको जी, कंपलसरी कर दिया। अभी आपने कंपलसरी, मुकेश गांधी साहब कंपलसरी कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया, बोलते हमारे रिलीजन के खिलाफ है, दिस इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट, दिस इज इनकंसिस्टेंट विद सेक्युलर वैल्यूज। सेक्युलरिज्म पे एक प्रश्न लगा दिया है बीजेपी, मोदी साहब और योगी जी ने। हाउ, कितना इसमें वर्थ डिबेटिंग। मुकेश गांधी साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा इलीगल।
हाँ जी सर, मैंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की पूरी मैटर को पढ़ी हुई है। उनका पहले से ही देश के अंदर बवाल करना उनकी जरूरत थी। 1946 में जब ये प्रस्ताव आया तो मुस्लिम लीग को हमारे हिंदुस्तान के 85 मुसलमानों ने पाकिस्तान के सपोर्ट में उन्होंने मतदान दिया था। तो वो पाकिस्तान मतदान दिया मुस्लिम लीग को, कांग्रेस को नहीं दिया। और वो वहां मुस्लिम लीग के पास गए, पाकिस्तान गए नहीं, भारत में रहा। और भारत में सर पूरा बोलिए ना, हिंद बनाने का प्लानिंग, मुकेश गांधी साहब पूरी बात बोलिए हिंद का पूरा ना। प्लानिंग। सर आप तो ऐसा मत बोलिए। मैं बता दो आप बाद में। नहीं सर, आप तो ऐसा मत बोलिए। कंप्लीट तो कर देंगे। बोलिए 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 मुकेश गांधी। बोलिए सर बोलिए। हाँ सर, अभी गजवाए, अभी वो बात तो, अभी वो पूरी हिस्ट्री की बात तो छोड़ दीजिए, पर ये सिर्फ 3 मिनट 10 सेकंड का वंदे मातरम का गीत जो है हमारी राष्ट्रीय भावना का, जिसमें उद्घोष है, इसमें देवी का वर्णन जो है वो देवी का वर्णन से ज्यादा स्त्री का सम्मान, स्त्री की शक्ति, स्त्री की पूजा, उसके बारे में है। और मुसलमानों को, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ वाले जो मुसलमान हैं, उनको लगता है कि अगर स्त्री को इतना सम्मान दे दिया तो हमारे धर्म की औरतों को हम तो मूर्खा में रखते हैं, उनको हमको जो सम्मान देना चाहिए वो देते नहीं है। तो इसके कारण मुस्लिम लेडीजों में वापिस विद्रोह का वातावरण आगे जाकर खड़ा होगा। सर ये इनकी सोच बहुत लंबी है और हमारे देश में हिंदुओं का ध्रुवीकरण करना मेरे हिसाब से बहुत ही जरूरी है। और वंदे मातरम से हिंदुओं का ध्रुवीकरण होना चाहिए। मैं बोलूं कुछ सर मैं कुछ नहीं है। अब मैं बोल दूं कुछ। आपने पहले कहा, हाँ बोलिए सर, मैं जवाब दूंगा उसका। ओके फाइन। आपने कहा 85% मुस्लिम्स वोटेड फॉर पाकिस्तान, हिंदुस्तान में जो थे, जहां जहां पर प्लेबिसाइट हुआ वहां पर। आपको मालूम है वोट कौन कर सकता था? व्हाट वर द कंडीशंस कि आप क्यों, कौन कौन लोग हैं जो वोट कर सकते हैं? यू हैव टू बी एन इनकम टैक्स पेयर, और यू हैव टू बी अ लैंड ओनर, और you had to be a government employee. That figure was less than 1%. Less than 1% of Muslims fell in that category. जो वोट कर पाए कि हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे या पाकिस्तान के साथ रहेंगे, ये वो है सर। जरा ध्यान से देख लीजिए कौन कौन वोट कर सकता था उस प्लेबिसाइट में। They were less than 1% of the people. नंबर 2, 1896 में 1896 में जब सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर खुद ने गाया। और चेयर कौन कर रहा था सेशन सर? आप जानना चाहेंगे? रहमतुल्लाह सयानी साहब चेयर कर रहे थे सेशन को। तो तब से आखिर तक मुसलमानों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। और आखिरी पॉइंट, आपने जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में बोला ना, वो 100% ठीक है। All India Muslim Personal Law Board is an NGO. It is not a government body. It is not even a government recognized body. It is just an advisory thing which these, वो इन लोगों ने आपस में कुछ बना लिया है। It has no legal sanction. सर कोर्ट के अंदर ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले गए थे, सुप्रीम कोर्ट had asked, who are you? तुम लोग कौन हो? You are not a recognized body. Get out. They can only advise. सीधी बात है। And very frankly, in my personal opinion, even the press should not take them seriously. ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ना, प्रेस को भी, इनको, मीडिया को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सीधी सादी बात है सर। Yes, you are right. ये मतलब दिस इज क्रेजी। और पूरा सच जो है, लाइक फॉर एग्जांपल ऑल द पीपल हु आर सपोर्टिंग द कांग्रेस, जैसे बेचारा कोई धोबी हुआ, मोची हुआ, नाई हुआ, दर्जी हुआ, ये सब जितने, और किसान हुआ, लैंडलेस लेबरर हुआ, ये सब कांग्रेस के सपोर्टर थे। They did not have the vote. They could not vote in the referendum for Pakistan, sir. They were not allowed to vote. ये सारे कांग्रेस के जितने लोग थे, अगर उनसे अगर आप वोटिंग कराते तो मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग हार जाती। सीधी सादी बात है। और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में तो वोटिंग हुई नहीं, एनडब्ल्यूएफ में तो वोटिंग हुई नहीं सर। वहां तो लोया जिरगा किया गया। जिरगा, लोया जिरगा होता है, पठान ट्राइब जो होती है वो जिरगा करते हैं। वहां पे लोया जिरगा हुआ। और वहां पे एक बड़ी अच्छी बात आपको मैं बता देता हूँ, डॉक्टर खान साहब, माय फादर यूज्ड टू बी पॉलिटिकल एडवाइजर टू डॉक्टर खान साहब।
सरदार पटेल ने गोनियों में भर के पैसे भेजे। डॉक्टर खान साहब, ही वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ खान अब्दुल गफार खान, ही डिड नॉट डिस्ट्रीब्यूट देम। एक पैसा नहीं दिया उसने किसी को। पैसे के बिना में कुछ होता नहीं है सर। दे वर ऑल रेडी टू जॉइन इंडिया। भाई साहब ने पैसे नहीं बांटे। मैं क्लियर आपको बोल रहा हूं सर। आई विल सेंड यू ऑल द रेफरेंसेस। So I want to go to दोने साहब, कल भी एक डिस्कशन चालू था वंदे मातरम का। वंदे मातरम जिस प्रकार से मोदी जी, योगी जी एनफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, दोने साहब, are you with us? दोने साहब, can you hear us? Can Dr. Dhone hear us, please? I don't think he can hear us. Can we please connect Dhone साहब properly? हाँ बोलिए सर। Gandhi साहब, you want to say something on वंदे मातरम before I go to Dr. अविरल मलिक जी? क्या अविरल मलिक? हाँ, वंदे मातरम जी, बोलो। चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ये वंदे मातरम हेलो सर। लिखा। और दूसरी बात ये है प्रदीप जी कि ये जो इनका हिंदुओं के मतों का ध्रुवीकरण करना है, उसी तरह बंगाल का इलेक्शन नजदीक में आ रहा है, उसके एंगल में भी बीजेपी ने ये वंदे मातरम के गीत को कंपलसरी किया है। वहां भी बवाल मचा है। ममता बनर्जी ने भी इसका अपोजिशन किया है। ये वहां के लोग उनका सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। ये पॉलिटिक्स है। और इसके बीच में वंदे मातरम हमारी नई पीढ़ी के जबान पे आ जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो काम किया है, बीजेपी गवर्नमेंट ने, उसके लिए मैं उनको प्रशंसा के पात्र गिनकर अभिनंदन। दोने साहब, इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। दोने साहब, इलेक्शन उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, किस प्रकार से आप देखते हो? क्या इलेक्शन से प्रेरित है या मोदी जी के दिल से निकली हुई आवाज है? दोने साहब। सर मोदी जी के दिल से कुछ निकली हुई आवाज नहीं है। ये तो ऐसा है कि जिनका वंदे मातरम को विरोध है, उनके साथ बैठे हुए हैं। AIMIM जो है, उनके साथ वो अमरावती में, अकोला में, अलग अलग जगह पे सत्ता में बैठे हुए हैं। उनके सपोर्ट से इन्हें सत्ता में बैठ गए। तो ये जो है ना, पहली बात तो ये ना वंदे मातरम कहते थे, ना ये जनगण मन कहते थे। इनका तो अलग ही गीत था, सदा वत्सले मातृभूमि, इनका तो अलग ही गीत है। इनका कहाँ है राष्ट्र की जनगण मन को नहीं मानते, ना वंदे मातरम को नहीं मानते। अब कुछ मुस्लिम लीडर इसको बोल रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे वंदे मातरम, तो इनको मुद्दा मिल गया। ये 100% पॉलिटिकल है। इनको वंदे मातरम से कुछ लेना देना है नहीं। पश्चिम बंगाल का इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, उसको देखते हुए इन्होंने पॉलिसी बना ली है। और जो विरोध करने वाले लोग हैं, वो भी इनके लोग हैं, मुस्लिम समाज के जो है। तो डॉक्टर ढोने, MIM जो है तो इनकी पार्टी है। तो डॉक्टर ढोने, आप MIM कौन सी अलग पार्टी है? आप वंदे मातरम गाते हैं। भर के लोगों के लीडर पे इन्होंने, पूरे दुनिया भर के लीडर जितने लाए, सब पे इन्होंने ईडी की इंक्वायरी कर दिए। लेकिन ओवैसी साहब पे तो खुली छूट है। वो हिंदू को गाली दिए तो चलता, वो राम को गाली दिए तो चलता। राम को कभी नहीं दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोले कि राम की माँ काका जनी, उसके ये बोला तो भी चलता, उसपे कोई कार्रवाई नहीं। उसके भाई ने बोला खुली छूट। जो हिंदुओं का अपमान करेगा उसको खुली छूट। सर आप वंदे मातरम को मानते हैं ना? और वो वंदे मातरम का मुद्दा उनका ही है। सर आप वंदे मातरम को मानते हैं? आप तो गाते होंगे डॉक्टर ढोने। बिल्कुल मानते हैं। तो वंदे मातरम ने लिखा है सर, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम। सुजलाम सुफलाम का क्या मतलब हुआ? वेल वाटर्ड, वेल फ्रूटेड, फर्टाइल फील्ड्स। मलयज शीतलाम, कूल, फ्रेश, ब्यूटिफुल ब्रीज फ्रॉम द माउंटेन्स। Are we doing this, sir? Cool, fresh, beautiful breeze from the mountains? Are our fields well watered and fertile? Are they? आप खुद बताइए सर। यहां तो हम वंदे मातरम गा गा के बोल रहे हैं, ये हमारी माँ है। वंदे मातरम, I bow to thee, divine mother. May your fields be fertile. May your air be clean. May your water be drinkable. May it be like nectar. दैट इज अमृत की तरह हो। कहाँ है अमृत सर? पानी। आप मुझे बताइए, इसको इंप्लीमेंट भी तो करें सर। सिर्फ गाने का कुछ नहीं होता। गाने में इंदौर में तो राज में बच्चे मर गए, लोग मर गए सर। 20-22 लोग मर गए 22 लोग पानी पीने से। करेक्ट है।
तो वंदे मातरम गाने से क्या होगा, उसको इंप्लीमेंट भी कीजिए ना। और डॉक्टर होने बोलिए बनारस में तो, बनारस तो अभी भी गंगा मैली है जी। और वो वहाँ के प्रधानमंत्री उस क्षेत्र के सांसद है, 2014 से है, 10 सर साल हो आप गए, आप बड़ा तमीज वाला शब्द इस्तेमाल फिर कर भी रहे हैं, गंगा मैली मैली है। है। आप तमीज वाला शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बड़ा कर्टेसी वाला शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मैली है। सर द गंगा इज गॉन, इट इज सो पोल्यूटेड, इट इज सो पोल्यूटेड, आई डोंट इवन नो व्हाट्स हैपनिंग। वो जो 2-2.5 हजार करोड़ कहां गया किसी को मालूम ही नहीं है। गंगा की सफाई में, यमुना की सफाई में किसी को मालूम नहीं है कहां पर गए वैसे। लेकिन डॉक्टर ढोने, आप भी तो थे ना 60 साल तक, आपकी सरकार थी। अब ये गंगा की जो हालत हुई है उसका फाउंडेशन तो आप ही ने लेके आए ना, फाउंडेशन तो आप ही ने लगाया ना उसका। डॉक्टर ढोने बोलिए। सर कांग्रेस ने 60 साल राज किया, लेकिन ऐसे गंगा साफ हालत थी। में कांग्रेस के पास सत्ता आई थी जी। कि देश में कुछ भी नहीं था। जी। क्या था देश में? नहीं था, पूरा नहीं। अंग्रेज लूट के लेके गए। गए, सब सोना लूट के लेके गए, सब पैसे लूट के लेके गए। क्या था हिंदुस्तान में? ऐसे हालत में हिंदुस्तान में सत्ता आई तो हिंदुस्तान की बनाए, हिंदुस्तान डैम के बनाए, साथ कोई एम्स नहीं बनाए, IIT बनाए, बहुत सारी कांग्रेस ने तरक्की की है ना सर। सर, जो आज कांग्रेस ने फाउंडेशन देख रहे हैं कि मोदी जी ये बेच रहे हैं, वो बेच सर रहे जो हैं, भी सरकार में आता जो करेगा ही मोदी जी ना, बेच उसमें रहे क्या हैं है? तो जी हाँ। सर हाँ। जो जिसकी भी सरकार होगी वो करेगा, देश के लिए कुछ तो करेगा ना सर। आपकी सरकार थी, नहीं, वो आपसे ठीक है। अपेक्षा थी कि आप करेंगे, तो लेकिन आपने अभी किया। बेचने का काम बढ़िया। कर रहे हैं। इसलिए सर, आप हमने तो तैयार करने का काम किया। सर, इसलिए आप 60 साल ये तक तो आपने बेच राज रहे, हम किया। और ज्यादा बोलेंगे नहीं सर। एक सोशल मीडिया पे चलता है कांग्रेस ने क्या किया, मत बोलो बोलते हैं। आप बोलेंगे तो मोदी जी बेच देंगे उसको, मत बोलो, मालूम मत पड़ने दो क्या किया। सर, मैं तो आप रोज झूठा बोलता बोलेंगे, हूँ। मोदी जी को मालूम पड़ा कि ये भी किया था, बेच देंगे मोदी जी, इसलिए हम पब्लिसिटी नहीं कर रहे सर अभी। मगर जब भी देश हित में कांग्रेस ने कुछ क्या काम किया? होता है कांग्रेस विरोध करता है। देश हित में जो भी काम होता है वो कांग्रेस नहीं, गलत बात है। विरोध करता है, चाहे वो यू डील हो, चाहे वो इंडो यूएस डील हो, वंदे मातरम हो, सावरकर को भारत रत्न देने वाली बात हो, हर चीज में आप विरोध करते हो। धोने साहब, ये कहां तक ठीक है? धोने साहब नहीं, बोलिए। ऐसा कुछ नहीं सर। वंदे मातरम को कांग्रेस का विरोध नहीं है। और ये जो चल रहा है संसद में, तो राहुल गांधी का जो भाषण हुआ, पूरे हिंदुस्तान का मैंने देखा, जो गोदी मीडिया छोड़ के बाकी जो निष्पक्ष पत्रकार है, यूट्यूबर है, पत्रकार है, चैनल है, उन्होंने सब ने तारीफ किया। और पब्लिक में भी बहुत तारीफ सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। सर, आम एक चीज पब्लिक, तो कांग्रेस माननी के पड़ेगी। कार्यकर्ता तो बोलेंगे राहुल गांधी का बढ़िया था, आम पब्लिक भी बहुत खुश है कि क्या बोले राहुल गांधी ने। सर एक चीज तो बहुत अच्छी है, तो उन्होंने लोग जो तो बात बहुत करी, खुश है। एक चीज बहुत अच्छी बात करी उन्होंने कि जो अभी प्रदीप जी बात कर रहे थे, फौज की जो डिसेबिलिटी कॉम्पेंसेशन है, राहुल गांधी जी ने बोला भाई उस पर टैक्स हटाइए। वो बहुत जबरदस्त चीज है सर। ये क्यों उस पर टैक्स करना चाहते हैं, मेरी समझ के बाहर है। ढोने साहब, आप खुद सर्विस फैमिली से आते हैं, आपके पिताजी खुद फौज में थे, आप बताइए डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर टैक्स सर, सॉरी डिसेबिलिटी कॉम्पेंसेशन के ऊपर टैक्स, इज दैट फेयर? ढोने साहब आप बताइए। सर ये तो पूरा अनफेयर है। और दूसरी बात, इन्होंने जो नई स्कीम लाई ना कि अग्निवीर, ये भी कितनी खराब है। लोग क्यों मरेंगे? 2 साल की नौकरी है, बाद में मरने के बाद अगर वो देश के लिए मरता है, शहीद होता है, तो उसके बाद कुछ सुविधा नहीं है, तो क्यों लोग जान जोखिम में डालेंगे? सर नो पेंशन, नो एजुकेशन, नो इंश्योरेंस, नथिंग फॉर द फैमिली। बट यू नो, देश के लिए सब, सुनिए सर, देश के लिए सबके दिल में प्रेम है, देश का अभिमान है, लेकिन जब उसके बच्चे हैं, बीवी है, करेक्ट, उसको ये यकीन दिलाना होगा कि भाई तू अगर शहीद हो गया तो तेरे बीवी बच्चे का हम ख्याल रखेंगे। देश के लिए शहीद हुआ तो भी कुछ हरकत नहीं। तो ये कहाँ अभी भावना रह गई? भावना सर, इन्होंने देश को बर्बाद किया। इन्होंने जय जवान जय किसान जो नारा लगाया था लाल बहादुर शास्त्री ने, उसको खत्म कर दिया। किसानों भी खत्म कर दिया, जवान भी खत्म कर रही है लोग। भारत रत्न का गौरव, साहब ने बोले, भारत रत्न का गौरव बढ़ता था अगर सावरकर को देता। मोहन भागवत जी का ये स्टेटमेंट पर कांग्रेस इतना आलोचना करना, क्या गौरव नहीं बढ़ता था? क्या वीर सावरकर को भारत रत्न देने से कैसा बढ़ता था सर गौरव? नहीं, कैसा बढ़ेगा गौरव? जिन्होंने देश के लिए अंग्रेजों से माफी मांगी,
उनको आप सब यानी इनको सब जो बड़े बड़े नेता जिनको ये मिला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग सब जिनको जो भारत रत्न मिला है, बाबा साहब अम्बेडकर, तो ये सब इनको एक ही लाइन में बैठा रहे आप, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो धोने जी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, एक भी धोने जी बोलिए बोलिए। प्रणब मुखर्जी ने क्या बड़ा तीर मारा कि उनको भारत रत्न दे दिया? यही बीजेपी ने किसको? क्यों प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दे दिया? उन्होंने क्या बड़ा तीर किसने मारा? दिया? और मैं भाजपा, किसने दिया सर? बीजेपी ने दिया ना सर, बीजेपी ने। बीजेपी ने दिया। और मैं बीजेपी का ये दोहरा चलन भी मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं आपकी फेवर में हूं सर, कि सावरकर जी को भारत रत्न देने में इतने सालों से बीजेपी क्यों कहानियां बना रही है? भागवत जी खाली पब्लिक में डायलॉग करने के लिए बात करते हैं, और सावर जी को क्यों नहीं देते हैं भारत रत्न? और प्रणब मुखर्जी को बीजेपी दे सकती है, तो सावरकर जी को नहीं दे सकती है? प्रणब मुखर्जी को इसलिए दिया क्योंकि पश्चिम बंगाल में इलेक्शन नजदीक थे, बंगाल के लोगों को खुश करना था। सावरकर जी के कोई फॉलोअर है नहीं कि उनको भारत रत्न देने से किसी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके फॉलोअर कम है जी। उनके फॉलोअर नहीं है सर। सावरकर जी के पूरा महाराष्ट्र सावरकर जी का फॉलोअर है, आप ऐसी बात मत कहिए। नहीं ये क्या है? बीजेपी का मुकेश गांधी साहब, छोटी सी बात करूं आपके साथ। कभी कभी बीजेपी की पॉलिसी हमको समझ में नहीं आती है सर। मैं आपकी बात आपके सामने छोटी सी बात रखना चाहता हूं कि स्पेशली महाराष्ट्र में जो ओबीसीज है ना, ओबीसीज, ट्राइबल्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वहां पर सावरकर जी की पॉपुलैरिटी जरा कम है, मैं आपको बता दूं वेरी फ्रैंकली। बाकी हर जगह पे है, जबरदस्त है, वीर सावरकर जी का बहुत सम्मान है, हम बहुत सम्मान सर। उन्होंने संभाजी महाराज के खिलाफ लिखे, उन्होंने शिवाजी महाराज के खिलाफ लिखे जी, लिखा है। लेकिन तो कैसा हम मानेंगे लोग? लेकिन बेसिक चीज है कि तो अगर सर कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती रही। लेकिन एक चीज है जो मुकेश गांधी साहब बोल रहे हैं, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, डॉक्टर ढोने, उसके बाद में जाऊंगा अविरल मलिक साहब के पास, कि सर अगर किसी को आपको भारत रत्न देना है तो दीजिए सर। देने की एक ही वजह होती है, ना देने के हजार बहाने होते हैं। आपकी सरकार 12 साल से है, दे दो अभी अगर देना है तो। एग्जैक्टली व्हाट मुकेश गांधी साहब इज सेइंग, अगर देना है तो दीजिए। बाला साहब ठाकरे को अगर भारत रत्न देना है तो दीजिए, इसके ऊपर विलंब ना करें। और तीसरी चीज प्रदीप जी, जो राम सेतु है उसके ऊपर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी। 2015-2016 में भारत सरकार ने आकर के कहा, भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, दैट वी आर डूइंग दिस। सर अभी तक हो रहा है कि नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करना था राम सेतु को, अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। अब आप बोले डॉक्टर ढोने ये क्या है? बोलिए सर, डॉक्टर ढोने प्लीज। नहीं, राम सेतु को तो ये मानते ही नहीं ना सर। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, क्या बोल रहे हो यार? इन्होंने बोले कि राम सेतु तो काल्पनिक है जी, बोला। अरे वो राम सेतु के बारे में इन्होंने बोले काल्पनिक है, ये मोदी सरकार ने करेक्ट बोला है, इसके कोई मुकेश गांधी साहब वो ठीक बोल रहे हैं, वो ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले कपिल सिब्बल साहब की जो मिनिस्ट्री थी उन्होंने यही एफिडेविट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद मोदी जी की सरकार ने भी वही एफिडेविट फाइल किया है। आपको जान करके हैरानगी होगी, सेम एफिडेविट हैज बीन रीफाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट सर। आई एम नॉट जोकिंग, इट इज शॉकिंग। I want to ask डॉक्टर अविरल मलिक जी, जो धोने साहब कांग्रेस विरोध कर रहे हैं, डॉक्टर मलिक साहब, मोहन भागवत जी ने कहा कि भारत रत्न का गौरव बढ़ेगा अगर वीर सावरकर को भारत रत्न प्रदान करते हैं। तो व्हाई इज द कांग्रेस ऑब्जेक्टिंग? डॉक्टर मलिक, कांग्रेस का ऑब्जेक्शन किस लिए? क्या गौरव नहीं बढ़ेगा भारत रत्न का? मोहन भागवत जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से वीर सावरकर जी का जहां तक सवाल उठता, बिल्कुल स्पष्ट है, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, आदर्श है, मार्गदर्शक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जहां तक परम पूज्य मोहन भागवत जी के बयान का विषय बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई एक तरीके से दो राय नहीं है, बिल्कुल सही उनके द्वारा कहा गया है और पूर्ण रूप से सारा देश इस चीज का सम्मान कर रहा है। और जहां तक विषय विपक्ष के द्वारा कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, अब देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी मना करती है तो भी फंसती है, और अगर हाँ करती है तो भी फंसती है। इस प्रकार के कांग्रेस पार्टी के आज के समय में कर्म है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अलायंस किया है शिवसेना यूबीटी से,
और हमारे संजय राउत साहब और उद्धव ठाकरे साहब तो आदर्श बता रहे हैं वीर सावरकर साहब को, अपना मार्गदर्शक मानते हैं, अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। अभी अलायंस कैसे चल रहा है उधर हमारे राहुल जी कुछ और कह रहे हैं। तो ये जो एक तरीके से अलग अलग बयान आ रहे हैं, तो ये इंडिया अलायंस क्या चल रहा है अंदर वो समझ में नहीं आ रहा है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी इनका मजबूती के साथ नहीं चल रहा है, इससे क्लैरिफाई होगा। अब देखिए जहां तक विषय वीर सावरकर जी का, बिल्कुल स्पष्ट है उनके द्वारा जिस प्रकार से अगर बात कर ले जाए उनके जीवन की, बहुत लंबा उनका जीवन है, जिस प्रकार से उनके द्वारा कार्य किए गए। और जहां तक प्रेरणा का विषय है तो पूर्ण रूप से सभी लोग जिस तरीके से महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर में दुनिया भर में उनसे प्रेरणा लेते हैं, सबके वो आदर्श है। तो भारत रत्न की अगर बात कर ले जाए राम सेतु पे क्या हो रहा है सर? राम सेतु और विपक्ष भी कांग्रेस भी इसका समर्थन करे, शिवसेना यूबीटी तो मैं समझता हूँ संजय जी और सभी लोग समर्थन इसका करेंगे कहीं ना कहीं। अगर वो इसकी खिलाफत करते हैं तो एक अलग चीज हो जाएगी, लेकिन चाहे एनसीपी शरद पवार जी की बात कर जाए और सबकी बात की जाए, ये सब इसका मैं समझता हूँ सपोर्ट करेंगे सर करेंगे। लेकिन राम सेतु की बात अगर कर लें तो आपने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसको, और उसके बाद एक और आप लोगों ने एफिडेविट दिया है दैट वी आर नॉट श्योर इफ इट एग्जिस्ट और नॉट, ऐसा दिया है सर, वी आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट। तो सर ये क्या है सर? आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, कांग्रेस सरकार ने दिया था, काल्पनिक है। आप बोल रहे हैं कि अभी इस पर शोध हो रहा है कि वो असली है कि नहीं। राम सेतु सर अविरोध मलिक साहब ये तो गलत है। आपको बताता हूँ सर एक मिनट सर, बोलिए। 23 दिसंबर 2022 को जी जो मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, यस डॉक्टर इन्होंने बोले यस कि ये जो है कि नो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ राम सेतु करेक्ट बोला है इन पार्लियामेंट न्यूज है। यस सर पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट है, करेक्ट, एब्सोल्युटली ट्रू, क्वाइट ट्रू। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज लेड इट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, देयर इज नो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ राम सेतु। दिस इज व्हाट डॉक्टर जितेंद्र सिंह हिमसेल्फ हैज सेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। एमपी ये जो हरियाणा के इंडिपेंडेंट एमपी है कार्तिकेय शर्मा, इन्होंने राज्यसभा में पूछा था तो उसके जवाब में उन्होंने दिया कि कोई प्रूफ नहीं है राम सेतु का। करेक्ट है, कहा था मोदी गवर्नमेंट ने बताया राम सेतु, मोदी गवर्नमेंट ने बोला, और ये काल्पनिक है, रामायण का भाग है, ऐसा भी लिखा है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर अविरल मलिक ये क्या हो रहा है सर? इसका मतलब है सर ये रामायण को भी काल्पनिक ही मानते हैं, लेकिन वोटों के लिए लोगों में जाके बोलते हैं राम हमारे दिल में ऐसा वैसा, जो है सब वोटों के लिए है। कहने का मतलब राम को भी काल्पनिक मानते हैं, रामायण को भी काल्पनिक मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर मलिक कहने का मतलब ये हुआ, नहीं सर ये लोग, डॉक्टर मलिक साहब कहने का मतलब ये हुआ कि आपने कांग्रेस के कपड़े उतार दिए थे जो उन्होंने एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम सेतु काल्पनिक है, और आपके मंत्री जी खुद बोल रहे हैं पार्लियामेंट में 2023 को, कौन से डेट है सर? दिसंबर 23 के दिसंबर 13? आई थिंक 13 दिसंबर, 23 दिसंबर 2022, 23 दिसंबर 2022 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह 2022 हैज लेड दिस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। सर ये क्या हो रहा है डॉक्टर मलिक? अब आप जवाब दें सर प्लीज, गो अहेड। जी देखिए जहाँ तक भगवान श्री राम का विषय, तो भगवान श्री राम हमारे राम सेतु सर, राम सेतु, और जहाँ तक एक तरीके से विषय है कांग्रेस पार्टी का, तो मैं समझता हूँ जी इसे देखिए पॉलिटिसाइज ना किया जाए तो अच्छा है, बेहतर है। सर आपने जवाब दिया है सर, पॉलिटिसाइजेशन की तो एक अलग विषय में चला जाता, तो आपने ही पॉलिटिक्स करी थी सर इस पे। राम सेतु के ऊपर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने ये कहा है पार्लियामेंट में, माफ कीजिएगा सर, और उसकी अभी तक कोई करेक्शन नहीं आई है, ये भी बता दूं आपको। मैं आपको फिर बोल रहा हूं सर, आपके ब्यूरोक्रेट जो है तमिलनाडु के सर राजीव जी, तमिलनाडु का इलेक्शन आएगा तब राम सेतु का इश्यू वापिस आएगा, और बाद में बीजेपी एक नया स्टेटमेंट डालेगी और लोगों को प्रोवोकेट करेगी, आप चिंता मत कीजिए। तो राम सेतु बनेगा। मुकेश गांधी साहब जो होस्ट राम सेतु का जहां तक विषय 100% जो पहले हमारा स्टैंड था वही आज है, वही भविष्य में रहेगा। यानी काल्पनिक है, यानी काल्पनिक है, यही स्टैंड है ना आपका सर? आपका स्टैंड है काल्पनिक है सर, आपके मंत्री जी ने बोला है काल्पनिक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इज नॉट अ वेरी जूनियर मैन सर, ही हैज बीन MOS to PMO। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी सर क्या बात कर रहे हैं, उधमपुर के MP हैं सर, कम ऑन। डॉक्टर अविरल मलिक सर, जब राम सेतु का सब सर राजीव जी एक मिनट सुनिए, बोलिए सर। राम सेतु का जब इश्यू आया था तो उस वक्त हमारे बड़े तांत्रिक क्या नाम उनका, चंद्र स्वामी, मैं जवाब
चंद्रा स्वामी जी। मेरे अच्छे दोस्त थे, जी, सबके अच्छे दोस्त है सर। उन्होंने राम सेतु के बारे में पूरी मूवमेंट उठाई थी, पूरे राम सेतु के बारे में मूवमेंट उठाई थी। और आप लिख के रखना, अभी 26 के बाद में 27 में राम सेतु का इश्यू वापिस पुनर्जीवित होगा, फिर उसके ऊपर संशोधन चालू होगा और फिर बाद में रिपोर्ट आएगा कि राम सेतु काल्पनिक नहीं है, वो है, क्योंकि चंद्रा स्वामी ने उसके प्रूफ भी दिए हुए। सर चंद्रा स्वामी ने नहीं दिए, सबने दिए। मैं आपसे प्रदीप जी एक सेकंड सर, सीधी बात है, डॉक्टर अविराज मलिक और डॉक्टर और मुकेश गांधी साहब, डॉक्टर ढोने साहब, क्या है कि अगर आप राम सेतु को नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने डिक्लेयर कर दिया, प्रॉब्लम क्या कहां पर आती है वो सबके सामने समझाना चाहिए। सर लोग सच सुनने के आदी हैं, हमारी तरफ से वो नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, बट यू हैव टू गेट श्रीलंका ऑन बोर्ड। Unless both governments agree, you cannot declare it a national heritage monument of India. It has to be declared national heritage monument of both Sri Lanka and India. जब तक आप श्रीलंका को नहीं लेके आएंगे तो ये बात बोलते क्यों नहीं है? सीधा बोलिए ना, इट्स एन इंटरनेशनल इशू, ये अकेला भारत का इशू नहीं है। क्यों नहीं बोलते सर? और वाटर ट्रांसपोर्ट का इश्यू आता है बीच में, नहीं आएगा सर, वो नहीं बनेगा। क्या अटका हुआ है सर? सेतु समुद्रम नहीं बनने वाला, बट आपको बता दूंगा। ढोने साहब, आपको लगता है कि जो मोदी साहब का टूरिज्म डेस्टिनेशन है, राम सर्किट, भगवान राम का सर्किट, भगवान बुद्ध का सर्किट, भगवान कृष्ण का सर्किट, तो ये सर्किट जो मोदी साहब डेवलप कर रहा है स्पिरिचुअल रिलीजियस जो टूरिज्म का, वो क्या राम सेतु बगैर कंप्लीट होगा? दोनों साहब, राम सेतु अगर नहीं है तो शायद ये जो भगवान राम का सर्किट जो टूरिज्म उन लोग प्लान कर रहे हैं वो शायद पॉसिबल नहीं होगा। राम सेतु दैट इंक्लूड्स सीता जी जो श्रीलंका में गए, वो जो गार्डन है उस चीज का। दोनों साहब किस प्रकार से देखते हो आप? नहीं सर, हम तो हमारे लिए तो राम सीता जो है ये हमारे लिए तो भगवान है, हमारे दिल में है। सुबह से शाम तक हम बोलते, कोई मिला तो राम राम बोलते हैं। इनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये एक पॉलिटिकल नारा है। ये राम राम नहीं बोलते, बोलते जय श्री राम। ये जो है ना, इस तरह से बोलना ये पॉलिटिकल नारा हो गया। इनके लिए भगवान राम पॉलिटिकल है, हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए आस्था का विषय है, इनके लिए राजनीति का विषय है। ये फर्क है हमारे और उनमें। लेकिन सर आपको सपोर्ट करना चाहिए, लोग मानते नहीं ना सर। आपको भी डिमांड करनी चाहिए, कांग्रेस को भी डिमांड करनी चाहिए। कांग्रेस शुड ज्वाइन एवरीबडी एल्स इंक्लूडिंग डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, और ये बोलना चाहिए कि भाई इसको आप हेरिटेज मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करिए, नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट राम सेतु। आपको लगता नहीं है ऐसा होना चाहिए सर? यू शुड ज्वाइन हैंड्स। अगर आप ऐसा असल में मानते हैं, दिल से मानते हैं, तो बीजेपी विल बी एम्बैरेस्ड अगर कांग्रेस आज डिमांड कर दे। अगर आज बीजेपी डिमांड कर दे, होना ही चाहिए सर, बराबर है। हाँ सर, बिकॉज बीजेपी विल बी पुट अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। मुकेश गांधी साहब कुछ बोल रहे थे। मुकेश गांधी साहब जाना चाहते हैं, बोलिए मुकेश गांधी साहब। मुकेश गांधी साहब को जाना है, इनको एक अभी 500 करोड़ की डील करनी है इनको, इसलिए जाना है इनको। जी हाँ, बोलिए जी। और मुझे राम नाम की माला जपनी है, इसलिए जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। नहीं, मुझे कोई कहीं जाना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और अंत तक आपके साथ रहूंगा। सर देखिए ऐसा है डॉक्टर ढोने, यहाँ पर सीधी सादी बात है, कांग्रेस का रवैया अपने को समझ में आता नहीं है, वेरी फ्रेंकली। और मैं बार बार यही बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को खतरा है बहुत बड़ा। क्या खतरा है कि दे शुड नॉट गो द कांग्रेस वे। कांग्रेस जिस तरीके से गई और कांग्रेस हार गई, उस तरीके से बीजेपी भी चल रही है। सर बार बार आपके ब्यूरोक्रेट्स दे ऑलवेज लेट यू डाउन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने आप तो ये जवाब बनाया नहीं होगा, उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में छोड़ा होगा, किसी अंडर सेक्रेटरी ने या किसी जॉइंट सेक्रेटरी ने बना करके दे दिया होगा, उन्होंने प्रेजेंट कर दिया, रिटन क्वेश्चन था। अब आप मुझे बताइए डॉक्टर ढोने, आपको हराने वाले आपके ब्यूरोक्रेट्स, और पिछली बार मैं बार बार बोलता हूं 303 से 240 पर लाने वाले बीजेपी के ब्यूरोक्रेट्स। अगर आप लोग ये खतरा रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, मैं फिर आपको बोल रहा हूं बहुत तकलीफ होने वाली है। डॉक्टर मलिक, डॉक्टर ढोने, आपको लगता नहीं है कि द कांग्रेस शुड डिमांड कि राम सेतु नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कीजिए? बोलिए सर। मैं बिल्कुल, मैं बात करूंगा सर, प्लीज। मैं दिल्ली में लोगों से बात करूंगा कि ये इस तरह से होना चाहिए। मैं बिल्कुल जबरदस्त। आप बोलिए डॉक्टर मलिक, आपको लगता नहीं है राम सेतु नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट होना चाहिए? पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे बोलिए सर। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, और यही हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है। और आपने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी साहब का भी नाम लिया, तो हमारी पार्टी की भी आइडियोलॉजी यही है, 100%, इसमें कोई दो राय नहीं। जबरदस्त, थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच।
and so nice of you for joining us. बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय हर जय हर श्री राम। महादेव। जय जय श्री राम। जय श्री राम। और कल शाम से शिवरात्रि शुरू है, उसकी भी शुभकामनाएं आप सबको। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई। बोलिए सर। सर मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूँ, दुख व दारिद्र्य दहनम सर्व बाधा विनाशायम ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Well, that was nice, that was really truly nice. And before we go, we must tell you that the biggest news today is not anything else. The biggest news today, at least for me, is that Zimbabwe actually defeated Australia. Yes. सर T20 टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, जिम्बाब्वे ने। और अगर जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है तो साहब इंडिया पाकिस्तान का मैच जो लाइटली मत लीजिए। जो रोहित शर्मा जी ने बोला हमारी टीम को कि भैया सूर्य कुमार यादव जी, ये मत सोचिए कि यू जस्ट हैव टू शो अप। आप कोलंबो में पहला मैच खेल रहे होंगे, पाकिस्तान तो सारे मैच वहीं खेल रहा है। दे आर वेरी वेल यूज्ड टू द कंडीशंस बाय नाउ। आपके लिए वहाँ पे पहला मैच है, सो ज़रा ध्यान रखिएगा। एंड कंसिडरिंग द इंडियन परफॉर्मेंस अगेंस्ट नामीबिया, आई डोंट नो व्हाट्स हैपेंड टू द इंडियन टीम, और मे बी बिकॉज यू डिड नॉट हैव द फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ बॉलर्स। मोहम्मद सिराज नहीं थे, हमारे अर्शदीप सिंह नहीं थे। आई होप वी हैव अ फुल प्रॉपर टीम ऑन संडे, and I hope that boy, क्या है अखिलेश शर्मा, I hope he recovers by Monday. Abhishek Sharma, not Akhilesh, Abhishek Sharma. I hope he recovers by Sunday. But then if Zimbabwe can defeat Australia, Pradeep ji, anything can happen. Anything happens in cricket. It's Actually, T20. anything happens. Yes. It's T20. Anything can happen. Much more shorter, so anything happens. Yes, sir. Well, that's just about it. As far as tonight's show is concerned, आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ रहे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज। When you click to that icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. नेशन नाउ। Nation Now, the fastest growing channel of the nation. आप सब लोगों को पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से, प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। Namaskar. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद। Jai Hind.